बंद हो गया, फिर से खोले? क्या हो गया? हमारा बंद हो गया, खोलने जा रहे हैं। आज नहीं, बगैर खोल रहे हैं। पकड़ो, बढ़िया बढ़िया। Hello, Vivek Sir, from good afternoon. Yeah, very good afternoon. I think Dr. Nina has also joined, so you can check the connectivity. So, very good afternoon, Dr. Nina. She was the third person to join, so we have checked with her. She Okay. was audible, sir. अच्छा, आपका voice is breaking. Is it okay now, sir? Am I audible? Yes, very much, Dr. Nina. Yeah. Thank you. Vivek, you can just check your audio because there was a voice break. Is it okay now, sir? Or still Yeah, breaking? it's okay now. Thank you. Good. ₹85 वाला सिर्फ ले लो।
आवा 2 घंटा बाद भर देब ना, 2 घंटा बाद। नहीं बाबा तब होगा, ऐसे ना होगा। आवा 1 घंटा बाद एक बार तब बोल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इंश्योर कर लें आपके सारे एजुकेटर्स या जो एजुकेटर्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं उनके दूसरे और कलीग एजुकेटर्स अगर वो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो ज्वाइन करें, बिकॉज विल स्टार्ट शार्प एट 3। 7 मिनट्स हमारे पास और भी हैं। प्लीज इंश्योर करें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बिकॉज हमारे साथ आज जो रिसोर्स पर्सन है, शी हैज अ वाइड एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्लस मेनी मोर थिंग्स। तो इस सेशन को हम मिस नहीं करना चाहते। सारे लोग ज्वाइन करें ऑन टाइम, प्लीज इंश्योर कर लीजिए। क्या ये कुछ तभी तो हम जानेंगे। Vivek, kindly make Pinky and me as a co-host. Yes sir, just doing. Dr. Nina, will she be sharing some presentation? Just yes sir. No, Dr. Piyush, I would just be talking. Speak. Okay, yeah. I And Vivek, you can mute everyone then. Yes sir, I have. Is my voice audible, Vivek? Perfectly sir. Okay. Yes sir. So all educators have not joined till now. So Pinky, just see. एक बार check कर लीजिए. Okay sir. ये सवेरे चली है का एडमिट करवा गल है रे, का करते है पहला पेज चली।
Good afternoon, everyone. Good afternoon, Dr. Neena ma'am, Dr. Piyush Gupta sir, my colleague Pinky, and all the CSE Bal Vidyalaya educators and the CSE Bal Vidyalaya management at their local level. So I welcome all of you to this session, which is going to be extremely interesting, very, very useful for all of us. बिकॉज हमारे साथ आज इस सेशन को डिलीवर करने के लिए जो एक्सपर्टीज जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनका एक्सपीरियंस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो एक्चुअली सीएसई बाल विद्यालय है जिसके लिए नर्सरी केजी वो उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैम का है एंड शी हैज बीन डूइंग लॉट ऑफ research work as well, delivering lot many sessions. So just want to give a very brief profile of ma'am. So Dr. Neena ma'am, she had the privilege to empower individuals and communities across age, so all age groups, gender, culture, from different socio-economic background, people from different background, and over 3 decades, he has been fortunate to reach to different people, to talk to them, interact with them as a trainer, coach, entrepreneur, educationist, and lot many things. She's also the founder of Anubhav Learning Center. You can see about this center on internet. You can find this Anubhav Learning Center, a very very widely accepted center and very innovative, different ideas they had. She has also established empowering young lives. So to coach, to heal, to encourage, to inspire people, of different background. She has been also associated with United Nations Development Program, Government of India, Government of Delhi, World Bank, and there are many universities and reputed schools of India, across the India, many schools he has been delivering, training and all. So we are very fortunate enough, ma'am, to have you today with us to, for the educators, and I hope they would take the benefit out of this session. Before we start, before we request ma'am to take up the session, I would request Dr. Piyush Gupta sir. So there are many people who are new to this session, maybe for the first time, because there are new schools we have signed up. So for them, Dr. Piyush Gupta is the chief consultant with CSE Academy. Sir heads CSE Academy and looks after everything that we do. So under his guidance. So I welcome you too, sir, and request you to say a few words before we request ma'am to start the session. Thank you, sir. Thank you very much, Vivek, and welcome all our CSE Bal Vidyalaya family members, which includes our VLEs and educators. A warm welcome, and this session is going to be very, very exciting because I have been interacting with Dr. Neena. Welcome, Dr. Neena, to this webinar. Our first interaction, your interaction with our highly motivated, you can see some of the faces, some of them they have switched on their camps, and these are our real rural educators, and they have really done wonderful things during the COVID pandemic, because during pandemic we have been talking of urban educators taking live classes, but that is now a very common thing in our rural CSE Bal Vidyalaya ecosystem. So many of our educators, they have been taking these classes in an online format and using digital content. So welcome once more all our educators. ये प्रोग्राम हमारे लिए सेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली हमारा जो एजुकेटर्स का रोल है वो बहुत चेंज हो रहा है, नॉट ओनली इन सीएसई बाल विद्यालय बट इन जनरल ऑल्सो. अब पेंडेमिक के टाइम बहुत कुछ सीखना पड़ा, नया चीजें सीखनी पड़ी हमारे द एजुकेटर्स और जिनको हम टीचर्स कहते हैं, बट द रोल ऑफ द टीचर हैज रियली चेंज्ड अ लॉट. ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई है और डिजिटल कंटेंट आ रहा है, मोर एंड मोर डिजिटल टूल्स आ रहे हैं, एलेक्सा आ गया, बहुत सारे ऑगमेंटेड रियलिटी के रिलेटेड आ गए टूल्स आ गए. सो विद दिस द रोल ऑफ द so-called earlier teacher, which was more of teaching, has totally changed to what we call as a facilitator, a motivator,
इन्फ्लुएंसर, ओके, सो अलग अलग नाम अब, जो पहले टीचर थे वो अब एजुकेटर, विच इज अ मच मच बिगर रोल, एंड टीचिंग, इम्पार्टिंग एजुकेशन से अब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, आउटकम बेस्ड बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली 1 साल के बाद बच्चों ने सीखा क्या, ठीक है। योर एजुकेटर इन बाल विद्यालय मे बी एक्सीलेंट विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट अल्टीमेटली एट द एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब नए नेशनल गवर्नेंस प्लान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी तरह डिफाइन करने जा रही है द रियल आउटकम्स। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट भी बाल विद्यालय के जो हमने शेयर करे हुए हैं, उसमें एक एनसीईआरटी करिकुलम का है जो पुराना है, उसमें भी वेरी क्लियरली दे हैव लेड डाउन द आउटकम्स एट द एंड ऑफ नर्सरी क्लास, व्हाट skills and what particular creativity या cognitive related whatever जो भी आप jargon यूज करना चाहें, टर्म यूज करना चाहें, बट एंड में बच्चे को 1 साल के बाद क्या क्या आना चाहिए। इसी तरह केजी के बाद what all things, so learning outcomes are the key thing now with the new policy of government, outcome based learning हो जाएगा। education is going to be a secondary, I'll say, ultimately it's a learning, how does the child learn, and because हमारे जो बाल विद्यालय हैं वहाँ पे तो पूरा का पूरा हमारा बेस ही टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्लेफुल लर्निंग है। so how do you really become an effective educator? You may be an experienced educator, you may be a very very knowledgeable educator, right? but effective क्या होता है, ठीक है। so हम इन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानेंगे आज, and I'll give we'll give full time to Dr. Nina, the expert, and hopefully you all, I'm sure you will really enjoy this session. कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप चैट विंडो में टाइप कर दीजिए, हम बीच में या एंड में मैम को रिक्वेस्ट करके क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, otherwise at the end we can have also a question answer session. So thank you very much and welcome once more all our educators, CSE Bal Vidyalaya educators and Dr. Nina. Thank you very much. Over to you, Vivek. Thank you so much, sir. So, without taking much time, just to add on, ma'am, we started on 6th July 2020, CSE Bal Vidyalaya, the first Bal Vidyalaya we launched on 6th July 2020. Now we are in the month of September 21. And during this period, the full-fledged training sessions that was organized by CSE Academy for our educators, 23 sessions full-fledged we have done along with the other in-house sessions and other. So this is going to be the 24th full-fledged by an independent trainer. So we keep on doing something to upskill our educators. So this is one of the part of that series. So I request you, ma'am, the stage is yours, all yours, and we all would like to learn a lot from you, your experience, and we'll have the questions at the end. As sir said, there is one more request. Please keep yourself on the mute mode. Please keep yourself on the mute mode. Thank you so much. Ma'am, over to you. Thank you, Dr. Piyush. Thank you, Vivek, for inviting me and giving me this wonderful platform to be able to share my journey and my learnings with all the educators today who are here from the CSC Bal Vidya Mandir schools. तो पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, and I was as Vivek said, probably the third or the fourth person to join in to make sure कि ऐसा ना हो हमारी आवाज ना आए, हमारा कैमरा ना ऑन हो, तो उसको कहते हैं एडवांस प्रेपरेशन. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं आप सबको पहले बधाई देना चाहूंगी. आई थिंक इट इज अनबिलीवेबल कि हमने 3 बजे का समय रखा और हम 3 बजे इंडिया में शुरू हो गए. वो कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 बजे बोला है तो कोई आने वाला नहीं है. So that is the first thing I should congratulate CSC and its affiliated schools that जो आपकी seriousness है और जो सीकिंग स्पिरिट है वो इसी से पता लगती है. और मैं देख रही थी कि पूरे 3 बजे
100 के ऊपर पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया था। तो इससे ही पता लगता है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत इफेक्टिव हो। तो मुझे नहीं पता मैं कितना आपको और इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाऊंगी, बट आई ऑल्सो बिलीव कि देर इज ऑलवेज अ स्कोप। अगर आज मैं समझूं कि मैं सब कुछ जानती हूँ एंड मेरा जर्नी वहां खत्म हो गया, तो आई थिंक दैट इज माई डेड एंड। सो हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। सो आज मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, बट आपसे बहुत कुछ सीखने भी आई हूँ। सो लेट अस मेक इट अ म्यूचुअली लर्निंग प्लेटफॉर्म। So thank you very much once again. Now before I start sharing with you कि हम अगर एक effective educator की बात करते हैं, तो वो इफेक्टिव या प्रभावशाली एजुकेटर हम कैसे बन सकते हैं, तो मैं बहुत बड़ी बातें नहीं बोलूँगी, बहुत साधारण चीज़ें हैं। बिकॉज बड़ी बातें बड़ी किताबों तक रह जाती हैं, छोटी चीज़ें हम याद रखते हैं और अप्लाई करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमने कितना सीखा वो नहीं इम्पॉर्टेंट है, हमने कितना अपनी जिंदगी में उतारा वो इम्पॉर्टेंट है। एंड मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ही जी है। आई ऑलवेज फेल्ट दैट whatever I learn, I must apply it in my life. Okay, and that is exactly what I am going to be sharing with you. So before we start, मेरा सबसे एक छोटा सा हम एक्सरसाइज करेंगे, maybe a few seconds. I will request you all to close your eyes और ऐसे अपने एक अध्यापक और एजुकेटर को याद करें जिसने आपको रियली प्रभावित किया हो, जो आप कभी भूल ही नहीं सकते। भुलाना चाहे तो ना भूल सके आप। तो अपने अपने मन में सोचिए और अपना वो नाम अगर लिखना चाहें प्लीज लिख लीजिए अपने कागज पे या डायरी में, जो भी आपके हाथ में हो। और एक लाइन ये जरूर याद करिए कि आप उस टीचर को या उस एडुकेटर को जिसने आपके ऊपर इतना प्रभावित आपको किया, व्हाई डू यू रिमेम्बर दैट पर्सन, व्हाई डू यू थिंक कि उसने आपको उसको आज भी आप याद करते हैं, ऐसा क्या खास था उस टीचर में। सो मैं एक या दो को रिक्वेस्ट करूंगी जो भी वॉलेंटरली शेयर करना चाहेंगे बिफोर वी गेट ऑन टू इट। इज दैट पॉसिबल विवेक? Yes, ma'am. ओके, तो लेट्स टेक बाय द वॉच। मेरी घड़ी में 3:12 हुए हैं। हम 3:15 पे 2 या 3 वॉलेंटियर्स को लेंगे जो अपने खुद से शेयर कर सकते हैं अपने को अनम्यूट करके। सो मैं दोबारा दोहराऊंगी, वो अपने एक ऐसे अध्यापक के बारे में हमको सोचना है, ऐसे टीचर जिन्होंने आपके ऊपर कुछ छाप छोड़ी हो और जिसको कभी आप भूल नहीं सकते हैं। और क्यों नहीं भूल सकते हैं, और आपने 2 वाक्य में ही अपना जवाब देना है। थैंक यू। कोई शेयर करना चाहेंगे टीचर का नाम एंड जो मैम ने कहा? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं इफ एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग, या आप अपना नाम लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, कोई भी। अंशु गुप्ता, okay, and Archana, Anisha Srivastav. Okay, so ma'am, we have 2 entries. We have basically more than 2 actually. So Let's start with the first 2. okay, अंशु गुप्ता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड इफ पॉसिबल वीडियो भी आप ऑन कर सकते हैं एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। Anju Gupta. I think Anju is not able to unmute. We can have the other person till there. जब Okay, तक unmute करती हैं। right. Anju Next is is unmuted. Anju is unmuted now. Okay. I think. Anju. I think we'll have to unmute. मैं अपनी तरफ से करके देखता हूँ। Good afternoon, sir हाँ, and ma'am. गुड आफ्टरनून, आपकी आवाज आ रही है।
जी सर, थैंक यू सर। सर मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने ये किया था, तो सर मेरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, हम लोगों की हिंदी की क्लास लेती थी। उनका नाम था श्रीमती निर्मला अशोक जी। सर उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनकी सिर्फ एक बात जो थी मुझे आज भी लाइफ टाइम याद आती है कि उन्होंने कहा था कि अपना ज्ञान जो भी हो हमारे अंदर शिक्षक के तौर पर, वो हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। और वो साधारण शब्दों में कहते थे कि अपनी लाठी हमें किसी ना किसी को दे जरूर देनी चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान आगे तक लोगों तक या बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजू, इतनी संक्षेप में आपने इतनी खूबसूरती से कहा। थैंक यू वेरी मच। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने मेरा पहले ही चुरा लिया, वो है एजुकेशन हैज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। हम क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ? और बच्चे क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो अगर एज अ शिक्षक, एज अ ट्रेड एजुकेटर मैं सेल्फिश हूं, तो मेरे बच्चे भी एजुकेशन जो ले रहे हैं वो अपने लिए ही ले रहे हैं, आगे के लिए नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट से आपने आज की इस वर्कशॉप को प्रारंभ किया है। थैंक यू सो मच अंजू। कोई और शेयर करना चाहेंगे, 1 or 2 क्विकली? अनीशा श्रीवास्तव, आपको मैंने अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट सेंड किया है, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। आप खुद से अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। Vivek, you can unmute Sharda from Bhiwani. ओके शारदा, आपको मैंने अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट दिया है, आप खुद से अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये अपने को मैंने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। मैं इसके भी पैसे दे चुका हूँ और उसके आपके रह गए हैं। आप अनम्यूट करें, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप में से कोई भी कर सकता है। शारदा, आप अनम्यूट कर पा रही हैं? हाँ। मैम एंड गुड आफ्टरनून मैम एंड सर। गुड आफ्टरनून, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल डेज में थी तो हमारी एक हिंदी की टीचर थी, पूनम पांडे टीचर। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभाव मुझ पे डाला, क्योंकि वह जो भी चैप्टर्स वगैरह पढ़ाती थी उसको रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा ही जोड़ के और कनेक्ट करके पढ़ाया करती थी। तो जिसके चलते वो चीज़, उनके पढ़ाए हुए हर चैप्टर्स मेरे जहन में आज तक है। और मैं भी जब भी पढ़ाती हूँ तो चाहती हूँ कि वैसे ही बच्चों को रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करूँ और वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करूँ। वेरी थैंक गुड यू। अनीशा, थैंक यू वेरी मच। और ये भी आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, जो ये कि हम केवल किताबी पढ़ाई ना कराएं, ठीक है। सो हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़े हैं, तो हमको लगता है हम वो सारा ज्ञान उतार दें, तो ऐसा नहीं संभव है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इतना सा समझाएं, इतना सा पढ़ाएं, लेकिन उसको बच्चों को अप्लाई करने के, जो मैंने क्या बात कहा कि जो भी हम सीखते हैं, समझते हैं, उसको पहले जिंदगी में उतारना है, और बच्चों को भी यही सिखाना है कि हम कैसे जिंदगी में। सो दीज 2 पॉइंट दैट हैव बीन रेज्ड टुडे राइट एट द बिगिनिंग, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एक इफेक्टिव एजुकेटर होने के। सो अब हमको समझ में आने लगे कि इफेक्टिव एजुकेटर कौन है। Okay, I know many of you have raised your hands and have showed interest कि आप शेयर करना चाहेंगे। तो and I really wish कि we had a 3-hour session कि हम सबको आपको रिक्वेस्ट कर सकते 1-1 मिनट शेयर करने के लिए, बट हमारे पास समय सिर्फ 4 बजे तक का है। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज, ये मैंने क्यों इससे शुरुआत की कि आप सब अपनी ही जिंदगी से बहुत कुछ आप जानते हैं, और हम शायद उसको पीछे छोड़ आते हैं, याद नहीं रखते हैं। तो आज का ये उद्देश्य यही था। What was the purpose of asking you to do this exercise was only to remind you कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे एजुकेटर्स के बारे में जानते हैं, आपने अनुभव किया है, तो आप हमको एक दूसरे से सीखना है। और जिन लोगों ने हमारे ऊपर कुछ छाप छोड़ी है, हमें प्रभावित किया है, तो वो चीजें हमें जरूर अपनी जिंदगी में, ये नहीं सोचना कि वो मेरे केमिस्ट्री टीचर थे, मैं तो प्ले स्कूल एजुकेटर हूँ, तो ये कैसे करूंगी। तो अब आप देखिए, ये दोनों चीजें जो हमने अभी सुनी, उसको आप एज अ प्ले स्कूल एजुकेटर अपनी अपनी बच्चों के साथ उतार सकते हैं ना, उस लर्निंग को।
ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। Okay, so before we start with anything, I think it is important for us to understand कि हम सब जो हैं आज वो प्री स्कूल एडुकेटर्स हैं, ठीक है। मैं भी अर्ली चाइल्डहुड केयर से ही, एडुकेशन से ही मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव उसी से ही जुड़ा हुआ है। तो बहुत बार मैंने क्या देखा कि जो अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर है ना, वो अपने आप में एक गर्व महसूस नहीं करते हैं, प्राइड महसूस नहीं करते हैं। किसी को अगर अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, अरे हम तो एक छोटे से टीचर हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि जो तो पीएचडी और एमएससी पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत बड़े टीचर हैं भाई, वो तो यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में हैं। हम तो एक 15, 20, 50 बच्चों के बीच में बैठे हैं, तो हमारी जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो कम है। तो सबसे पहले तो ये, अगर किसी के मन में ऐसा धारणा है, ऐसी सोच है, प्लीज टेक इट आउट ऑफ योर हेड, ओके, बिकॉज वो हमें लिमिट कर रही है, वो हमारे इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर रही है, क्योंकि हमने वो बाउंड्री क्रिएट करी, किसी ने नहीं करी, हमने खुद से करी है। सो वी नीड टू डिलिमिट आवरसेल्व्स। हमें वो सब बाउंड्रीज और वो जो फेंसिंग हमने करी है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। सो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट लेट अस टेक pride in the fact that we are preschool educators. Now, why should we take pride? हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? फाउंडेशन बनाते हैं, आधारशिला रखते हैं, उसके ऊपर ही तो मंजिलें खड़ी करते हैं। अब हम देखने जाते हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग देखिए जी, 100 मंजिल है, 200 मंजिल, क्या खूबसूरत है, ऊपर से क्या नजारा दिखता है, लेकिन वो 100 मंजिल खड़ी हो सकती थी अगर उस बिल्डिंग की आधारशिला कमजोर होती तो? राइट? नो। सो हम क्या कर रहे हैं सब? हम वो फाउंडेशन जिंदगी की क्रिएट कर रहे हैं। फाउंडेशन दिखती है किसी को? दिखती है? मंजिलें दिखेंगी, फाउंडेशन नहीं दिखेगी। तो हम क्या काम कर रहे हैं? हम इनविजिबल काम कर रहे हैं, जो दिखता नहीं है। तो एक बहुत, मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर हूँ, तो एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है जो हम सब एडुकेटर्स लेके चलते हैं। उसमें हम कहते हैं अनसीन वर्च्यू, अनसीन वर्च्यू मीन्स जो दिखता नहीं है, वर्च्यू मीन्स क्वालिटी, जो ज्यादा दिखती नहीं है क्वालिटी। अनसीन वर्च्यू लीड्स टू विजिबल रिवॉर्ड्स। पीयूष जी ने कहा आउटकम के बिना, तो जब तक रिवॉर्ड बने, कोई अच्छा इफेक्ट ना आए, अच्छा रिवॉर्ड ना बने, तो अच्छी फाउंडेशन होगी तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी और लंबी चलेगी और ऊंची उठेगी। तो हम किस पे काम कर रहे हैं? हम उनके फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी मस्ट टेक प्राइड इन इट। इफ वी टेक प्राइड इन आवर वर्क, then we will become effective. So one of the prerequisites, जरूरी चीज है इफेक्टिव होने के लिए, कि हम अपने जो भी हम कर रहे हैं वो हम बहुत उसको प्राउड महसूस करें कि हाँ वाकई मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब आती है बात कि हम प्री स्कूल एडुकेटर की एडुकेशन की पर्पस क्या है? हम क्यों लोगों को बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं? व्हाट इज एजुकेशन? क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? बताओ। हम जिंदगी क्यों जीना चाह रहे हैं? आखिर में हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से? कोई उदास होना चाहता है? हमारी जिंदगी का मूल उद्देश्य क्या है? वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू हैव हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। सो जो जिंदगी का उद्देश्य है ना, वही एडुकेशन का भी पर्पस है। The purpose of education is the happiness of each child. तो अगर हम इस फिलॉसफी से चलते हैं तो हम यकीनन एक बहुत खूबसूरत फाउंडेशन ले करते हैं। मुझे 18 साल हो गए अनुभव लर्निंग सेंटर को चलाते, राइट? अब उन 18 साल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कॉलेज जा चुके हैं, क्योंकि वो 3 साल के थे जब हमारे पास आए, 2.5 साल के थे। तो आज भी वो बच्चे, उनके पेरेंट्स हमको बताते हैं कि, और वो बच्चे कुछ अलग ही हैं, हमने कोई बहुत हाई फ्लाइंग बातें नहीं करी उनके साथ, बहुत सिंपल साधारण तरीके से पढ़ाया। और अगेन आई एम सेइंग, पढ़ाया मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे को आगे क्या रखता था? हमारा उद्देश्य
दैट हर बच्चा जो यहाँ आ रहा है वो खुश होना चाहिए। उसकी खुशी ही सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य हमारी एजुकेशन के लिए है। और जब कोई इंसान खुश होता है ना, जब आप खुश होते हैं तो आप अपना बेस्ट देते हैं, राइट और रॉन्ग? और अगर हम खुश नहीं होते हैं तो ना हम अच्छा ले पाते हैं और ना दे पाते हैं, राइट? सो वो रिलेशनशिप में भी जाता है, और एजुकेशन में रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है उसका, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेटर एंड द चाइल्ड। ओके, सो क्यों इंपॉर्टेंट है ये फाउंडेशन? आप देखो, हाई स्कूल में बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो एक ढांचा बना हुआ है और उस ढांचे को वो थोड़ा सा तराश रहे हैं वो वाले एजुकेटर, लेकिन हम तो ढांचा ही बना रहे हैं ना, राइट? सो एज अ फाउंडेशन हमारे पास जब बच्चे आते हैं, उन वो बिल्कुल जो क्लीन स्लेट होती है ना, खाली किताब जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ, वैसे आते हैं बच्चे। और उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, वो कहानी कहाँ से उनकी शुरू होती है इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, वो हम शुरू करते हैं। तो हमारा रोल जो है ना वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। उस किताब के पन्नों में, जिंदगी की किताब के पन्नों में शुरू में क्या लिखा गया, उसी पे निर्भर करता है उनकी आगे की कहानी। अगर उस किताब का टाइटल अच्छा नहीं होगा ना तो उनको मजा नहीं आएगा। पहली बार वो बच्चा अपना घर छोड़ के आता है हमारे पास, राइट? इससे पहले जो 3 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, वो केवल अपने परिवार में होता है। When the child comes to us, we are the first ones कि वो जो स्ट्रेंजर से, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि उसकी जो अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस होता है विद द टीचर इन द स्कूल, नाउ स्कूल इज नॉट अ बिल्डिंग, देयर मे बी नो बिल्डिंग बट अ स्कूल, राइट? सो हु इज द की पार्ट इन द स्कूल? द एजुकेटर, राइट? तो अगर एक एजुकेटर अच्छा है और उस बच्चे के ऊपर को उसने प्रभावित किया है, तो वो बच्चे की क्या सोच बन गई, उसने क्या लिख लिया अपनी डायरी में, अपनी किताब में, कि टीचर अच्छे होते हैं, राइट? और उसका पहला अनुभव जो प्ले स्कूल में अच्छा हुआ बहुत, उसको सुना गया, वो खुश रहा, तो वो बच्चा क्या लेके आगे चलेगा कि स्कूल जो है वो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, स्कूल में बहुत मजा आता है, स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, स्कूल में हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अगर उसका पहला अनुभव, पहले प्ले स्कूल में अनुभव अच्छा नहीं हुआ फॉर व्हाटएवर रीजंस, सो वो अगर उसको बहुत अच्छे लोग भी मिले, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भी गया, वो बच्चा खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपना पुराना अनुभव लेके आगे चल रहा है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी मोस्ट इफेक्टिव। एक विश्वविद्यालय के टीचर इतना इफेक्टिव है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बच्चे तब तक के कुछ बन चुके होते हैं। लेकिन हमारी जगह टाइम में, हमारे प्ले स्कूल में एक टीचर को इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ओके, सो आपके लिए तो वो एक बच्चा आया है ना आपके पास, अनदर वन चाइल्ड, बट उस बच्चे के लिए ना आप दुनिया हो, उसके माँ बाप के बाद, उसके परिवार के बाद। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग, दे से टू दैट चाइल्ड, that child is just one person to you, वो एक बच्चा है आपकी नजर में, but to that child, as an educator, to that child you are the whole world। तो उस बच्चे के लिए आप क्यों हो, पूरी दुनिया हो। तो अब उस छोटे से एक इंसान की दुनिया में वो क्या अनुभव करता है, ये हम पर निर्भर करता है, एजुकेटर्स के ऊपर। ओके, सो लेट अस, एंड अभी तो हमारा नेशनल एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पीयूष जी ने भी बताया, उसमें क्या है, 3 to 6 years का एजुकेशन मैंडेटरी है, कंपल्सरी हो गया। तो अनलेस एंड अनटिल चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड द साउंड बेस, और हमने देखा है जो देशों ने अर्ली चाइल्डहुड में बहुत अच्छा काम किया है, वो देश के बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो देश बहुत आगे बढ़ गए हैं, राइट? सो इसलिए प्लीज, मैं बार बार ये बात दोहराना चाह रही हूँ, प्लीज टेक प्राइड इन योर वर्क। अपने काम को बहुत बहुत उसके आपको अभिमान होना चाहिए कि मैं प्ले स्कूल टीचर हूँ, मैं आधारशिला क्रिएट कर रही हूँ एक जिंदगी की।
तो ये 3 से 6 साल जो अब हमको मिलेंगे प्ले स्कूल में, जिसमें बच्चा 3 साल से आएगा और 6+ में वो बड़े स्कूल में तैयार होके जाएगा। तो अभी क्या है, इंडिया में प्ले स्कूल्स की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। So I am very happy that CSE has taken such a great initiative कि वो इतने अच्छे स्कूल्स खोल रहे हैं और आप लोगों को इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एक साल में 24 सेशन करना कोई मजाक बात नहीं है। It's almost like devoting one full working month to scale you, upskill you, ठीक है, आपकी स्किल्स को बढ़ाना। ओके, तो अब हम इफेक्टिव एडुकेटर की ओर चलते हैं। तो इफेक्टिव एडुकेटर से हम क्या मानते हैं? एक प्रभावशाली एडुकेटर जो आज कल वो बच्चा जाके उसको याद रहे। हो सकता है आप उसको याद रह रहे हैं क्योंकि आप फाउंडेशन है ना, वो क्या लगाएगा बल आगे आने वाले समय में, अपनी IIT की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, बट शायद प्ले स्कूल का सर्टिफिकेट वो नहीं लगाएगा। प्ले स्कूल की ग्रेजुएशन से निकलने के बाद वो नहीं लगाएगा। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि ये जो आज आपको एक कागज मिल रहा है ना कि बच्चे ने प्ले स्कूल खत्म किया, इसको बहुत संभाल के रखना। इसी पे निर्भर करता है उसको आने वाले समय में क्या डिग्रीज मिलने वाला है। ओके, सो प्लीज put in your parents had this importance of early childhood education। इसको छोटा मोटा मजाक बात मत समझना। ये सिंपल एजुकेशन नहीं है कि हमने एक सब्जेक्ट उठाया और पढ़ा डाला। ये जिंदगी को बनाना या खत्म करना का बात है। मैं एक काउंसलर, लाइफ कोच हूं मैं। मेरे पास 70 साल के 55 साल के लोग आते हैं और उनकी कहानी कहां से पकड़ में आती है? उनके पहले 10-12 साल की कहानी, जिसका प्रभाव आज भी उनकी जिंदगी में है। अगर उनके अनुभव अच्छे हैं शुरू के 10-12-15 साल में और सबसे ज्यादा पहले 5-6 साल में। अगर हम न्यूरो साइंस की बात करें, ठीक है, तो बच्चे का जो ब्रेन है ना वो 90% डेवलप होता है पहले 6 साल में। तो अगर आपने उसको पकड़ में ले लिया तो आपने उस बच्चे को, सबके बच्चों की कैपेसिटी उतनी है, कम ज्यादा नहीं है। फर्क कहाँ आता है? अपॉर्चुनिटीज में। आपने उसको क्या एनवायरनमेंट दिया, आपने उस बच्चे को अवसर क्या दिया। अब वहां आता है एक अच्छे एडुकेटर का रोल, राइट। सो ये समझ लो कि 3 से 6 में अगर वो बच्चा ग्रेट कुछ बन गया तो वो उसकी जिंदगी संवार दिया। अगर उसने 10 गलतियां भी करी ना टीनेज में जाके, तब भी वो सही रास्ते पे आ जाएगा। ये मैंने एक अनुभव किया है अपने पुराने बच्चों के साथ। कोई बच्चा नहीं बिगड़ा है, वो बच्चा आज के जमाने का लगता ही नहीं है। दे आर वे डिफरेंट, वेरी बैलेंस्ड चिल्ड्रन। ओके, सो बिकॉज, एंड आज भी वो पेरेंट्स बोलते हैं मैम हमको वो स्कूलों की वजह से नहीं है, आज हमारा बच्चा जो है वो इसलिए है कि उसने पहले कुछ साल आपके यहाँ व्यतीत किए। एंड दिस इज व्हाट आई वांट ईच ऑफ योर स्कूल टू develop that let that parent come to you after 10 years 20 years। so आपका खेल 3 साल में खत्म नहीं हो रहा है, एक कहानी तो शुरू हो रही है। ओके, और आने दो बच्चों को, बोलो, डंका मार के। मैंने बोला था आज से 20 साल 18 साल पहले जब पहला प्रोग्राम किया था बच्चों का, ऐसे 20 साल के बाद मुझे इस बच्चे को देखना, तब तब मेरे को वैलिडेशन होगी, तब प्रूफ होगा मेरा कि जो हम फिलॉसफी से बच्चों को पढ़ाया है और हमने बच्चों के साथ काम किया है वो रंग लाई कि नहीं लाई, और वो रंग लाई, राइट। तो मुझे मेरा विश्वास अटूट हो गया। तो अब मैं अपनी जिंदगी से, अपने एक्सपीरियंस से जो हमने देखा कि हम अगर बच्चों को, और हम उस तरह के एडुकेटर बने तो हम इस देश का नक्शा बदल सकते हैं। आज अगर यहाँ पे 100-150 एडुकेटर्स हैं तो मत सोचो कि कितने, हमारे एक से क्या होगा, हमारे एक से बहुत कुछ होगा। हर काउंटिंग एक से शुरू होती है, सागर एक बूंद से बनता है। So each one sitting here is as important as each child who comes to your center. So first and foremost approach as an educator, as a good effective teacher, मेरी अप्रोच बच्चों के प्रति क्या होनी चाहिए? I must treasure each child, I must value each child, I must cherish each child। कि ये जो बच्चा है, हर बच्चा जो है ना
वो अपने में एक हीरा है, उसको तराशना मेरा काम है, राइट? एंड आई शुड बी एबल टू होल्ड, एम्ब्रेस, जिसको कहते हैं ना, हम आओ बच्चों हम आपको एक अच्छी सी जफ्फी डाल दे, हग कर ले, तो वो तो एक फिजिकल हग होती है, ये दिली हग है। मतलब कि वो मेरा बच्चा नहीं है, मैंने उसको जन्मा नहीं है, लेकिन वो मेरे को मेरे बच्चे से भी प्यारा है, क्योंकि किसी ने आपके ऊपर, किसी पेरेंट ने आपके ऊपर अटूट भरोसा करके उस छोटी सी जान को आपके हवाले कर दिया। लुक एट द ट्रस्ट ऑफ दैट पेरेंट। अगर वो पेरेंट आज से केवल शायद बिल्डिंग देख के आया, या सीएससी का नाम लेके, या बड़ा सा स्कूल आपका है, सुंदर सी चीजें हैं, ये लेके आया, लेकिन अल्टीमेटली उसको क्या मिला वहां से? एक अनुभव मिला अच्छा, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास कितनी सामग्री है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने मटेरियल्स हैं स्कूल में। एज एन एडुकेटर आप क्या हो, आपने उस बच्चे को अपना बच्चा समझा कि नहीं समझा? अगर समझ लिया तो ये मान के चलो कि वो बच्चा 70 साल के बाद भी ऐसा इंसान बन के निकलेगा और ऐसा नाम कमाएगा। नाम कमाना इज नॉट ओनली पैसा, इज गुड कैरेक्टर। सो एजुकेशन का पर्पस इज कैरेक्टर बिल्डिंग, वो शायद हम कहीं भूल गए हैं। सो प्लीज अब हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के चलो। सो व्हाट डज दैट रिक्वायर फॉर एवरी एजुकेटर टू डेवलप अ बिग हार्ट? सो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा दिल बहुत बड़ा होना है। एक्सपैंड करो अपने दिल को। अच्छा एजुकेटर वो है जिसका दिल बहुत बड़ा है, वो सबको उसमें समा सकता है, बराबर से समा सकता है। सो ये पहली रिक्वायरमेंट है। ओके, सो अब मेरे को बहुत लोग पूछते थे, जब मैं स्कूल चलाती थी तो मुझे बहुत लोग पूछते थे, मैम आप अपने टीचर्स का, एजुकेटर्स का अप्रेजल कैसे करते हो, कैसे जानते हो उसने बहुत अच्छा काम किया या नहीं किया साल में? अच्छा, मुझे कोई अप्रेजल की जरूरत नहीं, जो मेरे बच्चे हैं ना वो ही मेरी अप्रेजल है। एक दिन अगर एक टीचर नहीं आती, वो गेट पे खड़ी हो जाती है ना, क्लास के पास खड़ी होती है, वो बच्चे भागते हुए उसको पकड़ लेते हैं, ऐसे आती है, मैम 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 मैम, दीदी 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 दीदी, व्हाटएवर दे कॉल यू। अगर वो आपके पास भाग के आ रहे हैं, आपको वो मिस करते हैं, एक दिन आप नहीं स्कूल गए तो आपको इतने बारीकी से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ लो आपका बॉन्ड बन गया, राइट? लेकिन अगर वो बच्चे आपके पास नहीं आना चाहते हैं तो फिर हमको अंदर झांकना है, क्या कमी है मेरे में जो मुझे ठीक करनी है। मुझे बहुत कुछ आता है, एबीसी पढ़ाना, रंग पढ़ाना, एनिमल पढ़ाना, बर्ड्स पढ़ाना, किताबें लिखाना, बहुत कुछ, बहुत स्किल करा मैंने, लेकिन मेरा हार्ट ही नहीं है। और जो बच्चे हैं ना, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों को? चिल्ड्रन, बच्चे हैं भगवान का रूप है, बोलते हैं ना हमारे देश में बच्चों को क्या बोला जाता है? भगवान का रूप। क्यों बोला जाता है? ईश्वर का रूप क्यों बोला जाता है? उस पर भेदभाव नहीं होता है, उसके लिए सब बराबर है। बच्चे का दिल बड़ा स्पष्ट है, अगर उसको कोई सही दिल से प्यार करता है ना तो एक सेकंड में भांप लेता है वो, और अगर ऊपरी प्यार है वो भी वो बच्चा भांप लेता है, ठीक है? सो आप अपने आप से पहला प्रश्न पूछिए, ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी पेपर एंड पेंसिल, आई थिंक यू मस्ट हैव, प्लीज राइट इट डाउन। डू माई चिल्ड्रन लव मी? Do I have a big heart? Do I consider each child as my own child? तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं टू बिगिन विद, ठीक है? तो मेरा बड़ा, कितना बड़ा हार्ट है? इतना है अभी, कोई बात नहीं, हम बड़ा कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें बड़ा करना तो, अगर हम नहीं चाहें तो मेरा कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। So let us develop a very big heart that we are able to take every child as my own child. तो बहुत जरूरी है। वो बच्चा मेरे पास भागता हुआ आना चाहिए सुबह को, जैसे वो आता है ना तो मम्मी को बोले मुझे जाना है, स्कूल जाना है, मैम के पास जाना है, मुझे देर हो रही है। और हमारे पास मालूम है क्या है, जब माँ बाप आते थे ना बच्चों को लेने, या वैन का टाइम होता था, तो बच्चे बोलते मुझे नहीं जाना है, हाँ मम्मा मुझे थोड़ी देर और खेलना है। क्यों? क्योंकि उसको उस जगह में बहुत अच्छा लगता था। आज हमें जहां अच्छा लगेगा हम वहां से जाना नहीं चाहेंगे, राइट? सो 2 घंटे 3 घंटे की बात नहीं होती। तो बी दोज एडुकेटर्स हु हैव बिग हार्ट।
ओके, अब हमारे पास बच्चे आते हैं, ठीक है, अब नया एनरोलमेंट आया, नए बच्चे आए हमारे पास। अब वो बच्चे तो अपना परिवार छोड़ के आए हैं, तो यकीनन मोस्टली बच्चे जो आते हैं वो रोते हुए आते हैं, करेक्ट? करेक्ट। अब मैं बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू कर रही हूँ। रोते हुए आते हैं, अब हम क्या करते हैं, या तो डराते हैं, रोगे 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 शेर आ जाएगा, रोगे 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 पुलिस आ जाएगी, डंडे वाले भैया आ जाएंगे, डाडा 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 कुछ 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 बोलते हैं, सब लोग अपनी अपनी मर्जी से कुछ बोलते हैं। तो सबसे पहला काम है, हमने बच्चे का दिल कैसे जीतना है, बच्चे को बहुत कंफर्टेबल बनाना। अगर एक बच्चा आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहता है ना, तो पकड़े रखो उसका हाथ। आपको मालूम है, मैं तो बच्चों को सीधा पढ़ाती नहीं थी, बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो मेरे कमरे से निकलना नहीं चाहते थे, तो टीचर्स वुड कम, नहीं 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 मैम के रूम में नहीं बैठना। अच्छा क्यों, किसने मना किया, किसने ये रूल बनाया कि मैम के रूम में नहीं बैठना? तो मैंने अपने रूम में थोड़े से कुर्सियां रखा था, बच्चे आते थे, तो जो बच्चे शुरू शुरू में एडजस्ट नहीं होते थे, आई वुड से कम एंड सिट विद मी। वो बच्चे बैठते थे, देखते रहते थे, मैं उसको कलश देती थी, बीच बीच में हम बात करते थे, वो टिफिन भी वहीं खाते थे एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो क्या हुआ, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, 5वें दिन वो बच्चा सेटल हो गया, वो कंफर्टेबल हो गया, वो वापस क्लास में चला गया। लेकिन हमने उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी, ठीक है? सो फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द चाइल्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेक दैट चाइल्ड वेरी वेरी कंफर्टेबल, उसको लगे ये मेरा ही जगह है, यहाँ सब लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे, उसको वो एहसास दिलाना है, ठीक है? और हर बच्चा अलग है, तो यू गिव देम दैट टाइम एंड स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समय दो। कोई बच्चा तो पहले दिन से क्लास में जुड़ जाएगा, 1 महीने के बाद रोएगा जब उसको पता लगेगा यहाँ तो मुझे डांट भी पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो आने के में 1 हफ्ता रोएंगे, कोई 2 हफ्ता रोएंगे, कोई 1 महीना लगाएंगे सेटल होने में। I want to give you an experience of one child. We had this one child whose grandparents were in Bihar, okay? और पेरेंट्स दिल्ली में जॉब करते थे। अब वो बच्चा 2 साल 2.5 साल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहा था। जब वो आया यहाँ तो उसको अच्छा नहीं लगता था, लैंग्वेज विभिन्न थी, सारे चेहरे नए थे और माँ बाप भी नए थे, ठीक है? तो वो रोता ही रहता था, वो ग्रिल पकड़ के विंडो की बोलता था बा 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 बा। और जो हमारे गार्ड भैया थे ना, उसके साथ उसको बहुत प्यार हो गया, उसको वही एक अच्छा लगता था और कोई अच्छा नहीं लगता था, शायद वो उसको उसके दादाजी की याद दिलाता था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने अपने गार्ड भैया को बुलाया अंदर, वहां खड़े कर दिया, एक दीदी को बिठा दिया कि आप थोड़ा टाइम यहाँ बैठो, वो भैया के साथ इस बच्चे को खुश रहने दो। तो वो उन्हीं के साथ बैठ के वो खाना खाता था। तो वो हफ्ता 10 दिन उसको इतना हुआ कि उसने रोना बंद कर दिया। फिर जब क्लास में आया फिर रोना शुरू हो गया। तो फिर हमने कहा अच्छा अब क्या करा जाए इसको सेटल करने के लिए, ये देखा जाए इस बच्चे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है। तो फिर हमने देखा कि वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है। जब वो ड्राइंग करने लगता है या उसको क्रेयॉन दे दो, वो सब कुछ भूल जाता है। अब एज एन एडुकेटर अगर मैं कहूँ नहीं नहीं अब तो स्टोरी टाइम है, क्रेयॉन रख दो, अब तो हमको बाहर जाना है बॉल से खेलने, वो बच्चे को बॉल पसंद ही नहीं है, वो तो क्रेयॉन से ही दिन खुशी चाह रहा है। तो उसको जब हमने क्रेयॉन दे दिया, उसके बाद से उसका रोना बंद हो गया, वो इतना खूबसूरत काम करता था। तब उसके पिताजी ने बताया कि उसके दादाजी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, राइट? सो कहने का मतलब कि वी मस्ट मेक चिल्ड्रन कंफर्टेबल एज दे आर, नॉट एज वी वांट देम टू बी, राइट? सो उनको थोड़ा सा समय दो, उनको खूब सारा प्यार दो, उनको वो सब करने दो जो वो करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अपने प्रोग्राम में उनको शुरू शुरू में मत बांध दो, कोई जल्दी नहीं है, हमको कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है यहाँ, ठीक है? Second most important thing is no discrimination. An effective educator कौन है? जो कोई भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव चाहे वो कास्ट को लेकर हो, कलर को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर हो। अब हम लोग अगर रूरल एरिया से हैं, वहां पे कास्ट का, रिलीजन का बहुत बोर्ड बांधा होता है, तो हमको एज एडुकेटर उसको कट अक्रॉस करना है, करेक्ट? सो ऑल चिल्ड्रन आर अलाइक टू मी, they are my children and they are one and the same. So make no, अगर मेरे एज एन एडुकेटर मेरे दिमाग में कुछ ऐसी
भेदभाव की फीलिंग है तो उसको निकालना है, लिख लो। होता है, हम सब में होता है, ठीक है। तो अगर आपने बच्चों को रियल एजुकेशन देना है, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाना है, ट्रू एजुकेशन, राइट, अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना है और अच्छा देशवासी और अच्छा ग्लोबल सिटीजन बनाना है, तो उसको बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। लड़का है, लड़की है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ऊंची जाति नीची जाति, वो एक इंसान है। हमको किस आधार पे करना है? इंसानियत के आधार पे। तो ये कौन बदलाव ला सकते हैं? ओनली वी एज एजुकेटर। और वो अगर आपने बच्चे के अंदर भर दिया तो वो बच्चा आगे आके वही चीज को लेके चलेगा आने वाले समय में। थर्ड पॉइंट, that we must have faith in every child. Now what is faith? विश्वास, अटूट विश्वास कि हर बच्चे में उसकी कोई यूनिकनेस है। हमको देखने में लगेगा हम तो स्टोरी करा रहे हैं, वो बच्चा तो बात ही नहीं सुनता है, वो घूमता ही रहता है क्लास में। मैं हमेशा अपने एडुकेटर्स को बोलती थी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बच्चों की कैपेबिलिटी, क्षमता हम एडल्ट से ज्यादा होती है। बच्चे घूमते फिरते बहुत कुछ सीख जाते हैं। उनका कान आपकी तरफ है, आंख कहीं और है, हाथ कहीं और चल रहे हैं, और आप सोच भी नहीं सकोगे। जब आप उनसे पूछोगे तो वो बच्चे आपको पूरा का पूरा कहानी बता देंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये बच्चा तो बैठा ही नहीं था कहानी के समय में। दैट इज माई अनुभव एंड आई एम शेयरिंग दिस अनुभव विद यू। जबरदस्ती मत करो, थोड़ा समय दे दो बच्चों को, राइट। सो प्लीज बिलीव इन देयर यूनिकनेस। हर बच्चे में कोई यूनिकनेस हमें दिखेगा। हम बहुत बड़ी जल्दी लेबल लगा देते हैं, ये बच्चा बहुत शैतान है, ये बच्चा बहुत दफर है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता, ये बच्चा बैठता ही नहीं है, ये बच्चा ऐसा ऐसा वैसा। तो 101 लेबल्स आज लगा सकते हैं हम बच्चे के ऊपर, लेकिन हमारा एज एजुकेटर्स क्या काम है? कोई लेबल नहीं लगाना, ना बहुत अच्छे का ना बहुत खराब का। यो ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, सब क्लैप करेंगे, ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो हमने क्या करा? हमने भेदभाव कर दिया क्लास में, ये बच्चा बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा करता है, और ये बच्चा बिल्कुल बेकार है, अच्छा नहीं करता है। तो उस बच्चे ने जिसने नहीं करा, उसने उसी समय अपने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे आ गया, उसका आत्मविश्वास दब गया। आपने बोला नहीं कुछ भी उस बच्चे को, लेकिन उसने पहला मैसेज जिंदगी से क्या ले लिया कि मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं, आई एम नॉट गुड एनफ। माई टीचर सेज दैट चाइल्ड इज वेरी गुड, दैट चाइल्ड कंप्लीट्स द वर्क वेरी फास्ट। तो आपको पता है एक बच्चा जो फास्ट कर लेता है उसके ऊपर आपको तवज्जो देने का जरूरत नहीं है। आपको किस पे फोकस करना है? जो बच्चा समय लगा रहा है। Yes, we can do it. Yes, yes, सब clap करेंगे, we can do it, right? So what happens? We believe in that. Child will know कि ये जो अध्यापक है ना, ये जो मेरी मैम है ना, वो मेरे को बिलीव करती हैं, वो उनको मेरे ऊपर विश्वास है कि मेरे में भी क्षमता है, I can also do it. ये बहुत छोटी सी बात लग रही है सुनने में, ये जिंदगियां बिगाड़ बंदे देती है। मेरे पास अमीर अमीर लोग आते हैं काउंसलिंग लेने के लिए और रो देते हैं कि मुझे ऐसा कहा गया था, आई एम नॉट गुड इनफ। सारी जिंदगी लगा देते हैं प्रूव करने के लिए दैट आई एम गुड इनफ, आई कैन डू इट। सो प्लीज डियर टीचर्स, प्लीज डियर एडुकेटर्स, इस बात के ऊपर बहुत सोचना। हर बच्चे के काबिलियत निकालना है हमको, यही हमारा काम है। कोई बच्चा बिना काबिलियत के नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। वो बच्चा स्पीच डिले में आया था, उसको बोलना नहीं आता था, उसको ऑटिज्म था, लेकिन जब उसके हाथ में ब्रश आता था तो वो कमाल का काम करता था। किसी के पास किताब आ जाती थी, उसको किताब में ही प्यार था, सारे दिन क्लास का काम खत्म हो जाता था, उसकी किताब ही नहीं बंद होती थी। तो एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिकनेस एंड आप पहले 3 साल में बता सकते हो कि वो बच्चा आने वाले समय में क्या करने वाला है। हम करियर काउंसलिंग लेते हैं, फलाना लेते हैं, ऑल एडुकेटर्स जिन्होंने जिंदगी अपनी बिल्कुल बच्चे की लाइफ में डाल दी ना, वो उस बच्चे को तराश देंगे। बिल्कुल आपके पास हीरे आ रहे हैं, उसको हीरा समझो और उसको तराश दो। ओके ना, बहुत बार क्या होता है, बच्चे में तो आपने विश्वास कर लिया कि मेरे बच्चे में यूनिकनेस है,
आई कैन डू इट। बट जब डिफिकल्ट वाले बच्चे आ जाते हैं ना हमारे पास, किसी का व्यवहार बहुत डिफिकल्ट, बिहेवियर डिफिकल्ट होता है, या वो किसी को मार धाड़ करते हैं, या कुछ इस तरह से बहुत इश्यूज आते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं, तो क्या होता है, टीचर ही हार मानना शुरू कर देते हैं। वी एडुकेटर्स ये मेरे बस का ही नहीं है, ठीक है। तो हमको जितना फेथ बच्चों में करना है, जितना विश्वास बच्चों की काबिलियत में करना है, उतना उससे कहीं ज्यादा विश्वास अपनी क्षमता में करना है, that I as an educator can handle, can deal with every single child. I cannot give up on any child, right? So write down, I cannot and I will never give up on any child, right? Every child is very important to me. And I have that ability. But my teachers used to come and say, ma'am, but this child, sorry, ma'am, this child, sorry, ma'am, isko us ma'am ke paas bhej de. I said, no, you can do it and you will do it. It's only a matter of time, right? So हम सोच रहे हैं बच्चों को बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं. Please, no, no, no. हम बच्चों से बहुत कुछ सीख रहे हैं. जो बच्चों का टेम्परामेंट बहुत वीक होता है ना, वो हमको बहुत पेशेंस सिखा देते हैं. How to be very patient with each child. Okay? अब क्या होता है, हर बच्चे का सीखने का एक स्पीड होता है जिसको हम पेस बोलते हैं, PACE, पेस. हर पेस अपनी अपनी स्पीड पे बच्चा सीखता है. So what happens is some children are fast learners, some children are average learners. मतलब वो सीखते सब है, लेकिन वो अपनी पेस पे सीखते, अपनी स्पीड पे सीखते हैं. तो एक अच्छे एडुकेटर का क्या काम है कि हमको उस पेस पे चलना है जिस पे आगे वाले जो बच्चे हैं जो जल्दी कर लेते हैं, अब वो बोर होने लगेंगे. ठीक है, उन्होंने तो काम फटाफट से खत्म कर लिया, अब उनको हमें डबल काम देना है. और जो बच्चे मध्यांतर पेस पे हैं उसके साथ लगे रहना, और जो बिल्कुल थोड़ा धीरे पेस पे करते हैं उसका हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है. तो हर अध्यापक क्या चाहता है, फास्ट. ऐसा नहीं हो सकता, right? So we have to focus on children and give them that pace to learn. हम CBSE का सिलेबस खत्म नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन जब हमने उनकी पेस पे साथ काम कर लिया तो क्या होगा, that they will develop that confidence that I can also do it. My teacher is not scolding me, my teacher is supporting me. So उसको क्या विश्वास हो गया कि जो दुनिया है वो दुनिया सपोर्ट करती है, तो वो भी धीरे धीरे उसकी पेस बढ़ने लगती है. नाउ नेक्स्ट इज नेवर जज अ चाइल्ड. वो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि लेबल्स नहीं देना, प्लीज किसी बच्चे को लेबल नहीं देना, ना बहुत अच्छा का ना बहुत खराब का. इट रियली ब्रेक्स द लाइफ. आपने उस जिंदगी को उसी पल तोड़ दिया है बिल्कुल, राइट? तो कीप ऑलवेज पुशिंग चाइल्ड, मोटिवेटिंग देम. खुद ने हार मानना, continue working with every single child. Another important point. Now, many a times when children behave the way they behave, they don't like to dip their fingers in a color, or someone would say, yeah, you know, उसको crayons ही colors ही पसंद नहीं है, या किसी को किताब ही पसंद नहीं है, कोई लिखना नहीं चाहता है, और हमें लिखने पढ़ने पे फोकस नहीं करना है, हमको एक्सपीरियंशियल प्ले वे लर्निंग पे फोकस करना है. तो हमको जरूर हर बच्चे का पूर्ण रूप से उसको जानना बहुत जरूरी है. नो व्हाट आई से, नो योर चाइल्ड वेल. अब वो बच्चा किस एनवायरनमेंट से आ रहा है, उस बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके घर का माहौल कैसा है, उसके घर का वातावरण कैसा है, राइट? उसको पूर्ण रूप से खाना भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके परिवार में लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं उसका सिंगल पेरेंट है, राइट? या एक भी पेरेंट नहीं. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडुकेटर टू नो. तो अगर आपके पास 5 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, आपको एक एक बच्चे की जानकारी होना बहुत जरूरी है. देन व्हेन यू नो दैट दिस चाइल्ड इज कमिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ अ सर्कमस्टेंस, ऐसी सिचुएशन से वो बच्चा आ रहा है, then you will be able to deal with that child from that child's space, not from your space, right? So बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए कि हर जानकारी. हम क्या लेते हैं फॉर्म में, बर्थ डेट, मम्मी का नाम, डैडी का नाम, मम्मी की पढ़ाई, डैडी की पढ़ाई, इनकम, डाडा डाडा डा. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. फाइल में रखने के लिए बहुत अच्छा है, नॉट फॉर एन एडुकेटर. दैट इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट.
वो जिंदगी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडुकेटर टचेस द लाइफ, engages with the life, right? So we must know each and every child's environment, कहाँ से वो आ रहा है, किस माहौल से वो आ रहा है, ताकि हम उस बच्चे को उस तरह से समझ सकें और समझने का प्रयास करें और उसको उसी स्पेस से डील करें। ओके, नाउ many a time what we think, I am a teacher, ठीक है, तो I am a teacher, so वो बच्चा नीचे है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, but very important, if we start looking at children as miniature adults, children are miniature adults. So what is miniature adult? जिसकी कैपेसिटी सोचने की, सुनने की, समझने की एक एडल्ट के बराबर है, और शायद एडल्ट से ज्यादा है, कि कुछ कोरा कागज है ना, कुछ गंदपन नहीं अभी उसके दिमाग में, कोई जजमेंट्स नहीं है, वो बड़ा क्लियर स्लेट है, साफ स्वच्छ है बहुत। तो उस बच्चे को रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू मेक समवन हैप्पी, you have to respect that life. So every child must be respected very well. तो आपको अच्छा लगता है जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तू तड़ाक करके बात करता है? हम सोचते हैं क्योंकि हम तो पेरेंट हैं, हमारी अथॉरिटी फिगर है, हम तो टीचर हैं, हम तो, हमारे को तो पावर है बच्चे को सीधा करने की। नो नो नो, नो पावर, प्लीज नो पावर। लेट देयर बी इक्वल पावर, लेट देयर बी इक्वालिटी बिटवीन द educator and the kid. So we must learn to respect every single child. वो आप ऑटोमेटिकली करेंगे जब आप उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन कभी कभी हम अपने बच्चों को भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। सो लेट अस आल्सो बिकम गुड पेरेंट्स इन द प्रोसेस, राइट? नाउ हाउ डू आई ग्रूम माई सेल्फ? हम कैसे तैयार होके जाते हैं? अब अगर तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तब तो ठीक है, आप कुछ भी सज धज के जाइए, लेकिन अगर आप एडुकेटर हैं तो फिर आपको बड़ी फ्री ड्रेसिंग करनी है, बहुत कंफर्टेबल ड्रेसिंग करनी है। आप हील शील पहन के, बड़े बड़े नाखून, आई एम टॉकिंग टू वुमेन राइट नाउ, ओके, नॉट टू मैन, मैन आर ऑलवेज कंफर्टेबली ड्रेस्ड, ओके, तो बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े सब कुछ, ऐसा दुपट्टा, वो कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है, साड़ी का पल्लू इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है। ओके, कल्चरली वी हैव टू सी व्हाट वी वेयर, राइट? तो अगर हम साड़ी में ही है तो हमको साड़ी इस तरह से अच्छे से टाई करके रखनी कि मैं बच्चे के साथ कूद भी सकूं, बच्चे के साथ बैठ भी सकूं, जंप भी कर सकूं, रस्सी भी टाप सकूं और हर तरह का खेल कर सकूं। और अगर मैंने कहा आप खेलो, आप भागो, वो बच्चा कहेगा मैम आप भी भागो ना, आप भी तो जंप करो, तो मैं बोली नहीं 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 बेटा, मैं तो साड़ी पहनी हूं, मैं जंप नहीं कर सकती, सॉरी, दैट्स नॉट प्री स्कूल एजुकेशन इज ऑल अबाउट। Okay, so wear a salwar kameez, wear a kurta pajama, or if you are wearing a sari also, साउथ में सब साड़ी में खूब साइकिलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। Let us learn to do that. But कहने का मतलब है comfortable dressing बहुत important है। You know, in the West, दूसरे देशों में जहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत अच्छी क्वालिटी की चल रही है, हमारा देश तो पूरे विश्व भर में नीचे के रैंक्स में है, हमें बहुत मेहनत करनी है उसको ऊपर लाने के लिए। तो आप सबका कोऑपरेशन और एफर्ट हमारे देश की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की रैंकिंग को, ग्लोबल रैंकिंग को बढ़ा सकता है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट, वो क्या देखते हैं आपको मालूम है? जब वो एडुकेटर को सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो क्या देखते हैं? वो करवा के देखते हैं सब। आप भाग सकते हो, आप हाफ तो नहीं रहे हो चलते हुए, दौड़ते हुए, कूदते हुए, राइट? सो एवरीथिंग दे आर एबल टू जज एंड सी। ऐसा तो नहीं आप तो जमीन पे बैठ ही नहीं सकते, अरे मेरे तो घुटने ही छूट गए, मैं तो चौकड़ी नहीं लगा सकती, मैं तो वज्रासन में नहीं बैठ सकती, मैं तो एक्सरसाइज ही नहीं कर, तो फिर बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते हम, सॉरी। तो आई हैव टू मेक माई शरीर वेरी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू माई चाइल्ड। अ चाइल्ड विल से, ये मैम हमको तो बोलती रहती है, खुद नहीं करती है, वो जाके बोल देंगे घर पे, ठीक है? बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, right? So we have to engage. See, preschool education is all about doing things together, learning together. और बहुत बार हमें कह रहे, ओ मुझे तो पता ही नहीं था ये होता है, ये रेड कलर है, ओ मैम तो भूल ही गई। सो चिल्ड्रन फील, ओहो मैम भी भूल सकती है, अगर मैंने भूला तो कोई खराब क्राइम नहीं कर दिया, ये तो मैम भी भूल जाती है। So we have to be very very
playful with children. So please ensure that you are in good health physically, mentally, emotionally, and you are actually doing everything together. So this is the process of preschool education, is doing things together. Okay, now another important, आपने कपड़े महंगे पहने सस्ते पहने कोई देखने वाला नहीं, तुमको कोई भी नहीं देखने वाला है, ठीक है, लेकिन क्या देखने वाला है, आपका बड़ा सा स्माइल. सो आज सारे लोग कैमरा ऑन करके एक बड़ा सा स्माइल दे दो प्लीज. ये जितना आसान लगता है ना उतना आसान है नहीं है. सो कैन वी ऑल स्माइल? Can you switch on your camera quickly? I want to smile. I want to see the smiling faces. Thank you. That's beautiful. Excellent. Wonderful. Big smile, grinning smile. जितना बड़ा seriousness में preschool education के हम इतना नहीं हो सकते. Sorry. Right. Cameras on. अच्छा कपड़ा नहीं पहना, no worries. No one is looking at your कपड़ा. We are only looking at your face. A smiling face. Smile, smile. आसान नहीं है स्माइल. अपनी वाइफ पे, मम्मी पापा पे, बच्चों पे घर जाके स्माइल करना ना, और दिन बना दोगे. वो बोलेंगे आज क्या करके आए, इतना बड़ा सा स्माइल दे रहे हो आज, तो ये कैसे हो गया. प्लीज स्माइल. आई स्टिल कांट सी एवरीवन स्माइलिंग. सॉरी, आई एम नॉट वांट टू क्लोज इट. और मेरे को अगर 5 भी बजेंगे ना, एक बार मैं रिदम में आ जाती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घड़ी नहीं देखती हूँ. आई हैव टू कंप्लीट माई थिंग. आई एम अ वेरी कमिटेड पर्सन. थैंक यू. I can enjoy the smile. अभी भी smile ऐसा हो कि attract कर ले. Magnetic smile. One is to learn to smile. Second is to create a magnetic smile. Magnet क्या होता है? जो आकर्षित करता है. Correct? तो हम एक हमारा स्कूल का पॉलिसी था. We don't want you to wear expensive clothes. कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या पहन के आते हैं. But please wear a smile. That was our orientation to our educators. जिस दिन दिल ना करे ना स्माइल करने का, छुट्टी ले लेना, हम 2 क्लासेस को हैंडल कर लेंगे. बिना स्माइल के सेंटर में मत आना प्लीज. राइट? सो प्लीज स्माइल, स्माइल, स्माइल. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव एजुकेटर. यू नो व्हाट, हम कहीं और देशों में जाते हैं ना, तो राह चलते लोग भी स्माइल करते हैं. अब हमको इतनी आदत पड़ गई स्माइल करने की कि हम किसी को स्माइल करते हैं, वो हमको ऐसा देख रहा होता है, भैया क्या हुआ, आप इतना खुश क्यों हैं? अरे खुश होने का अधिकार है मुझे. राइट? वी नीड टू बी हैप्पी, सो लेट अस बी हैप्पी. हम लोग बड़ा सीरियस बना देते हैं अपने देश को, बहुत सीरियस बना के रखा है. थोड़ा जोवियल हो जाओ. बच्चों के साथ काम करना है तो मस्त होना पड़ेगा, चिल होना पड़ेगा. चिल. वो आज के यूथ कहते हैं ना, मामा चिल चिल. राइट? सो प्लीज चिल. अब छोटे बच्चों के साथ काम करना है तो चिल चिल ही होना चलेगा. डांस भी आना है, गाना गाना भी आना है, मल्टीटास्किंग होना है, मल्टी स्किल्ड होना है. हाउ मेनी ऑफ यू कैन डांस? नाच सकते हो? ढोलक बजी और नाचना चालू. वेरी गुड. कुछ भी है, हमारी आवाज नहीं कोई सुन रहा, बच्चा जज नहीं कर रहा हमको. राइट? बट कैन वी सिंग? कैन वी डांस? कैन वी प्ले? वी डोंट नीड excellent skills. All we need is a heart to do that. And let me tell you, it requires tremendous courage. इतना आसान होता तो मैं ये बात यहाँ लिखती नहीं और बोलती भी नहीं. So please reflect on it. Ma'am, just want to share one thing, if you allow. Yes, of Ma'am, course. if we see, we all must have seen or experienced this. छोटे बच्चे like जब ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप स्टेशन पे हो, मार्केट में या एयरपोर्ट पे, आप देखें छोटे छोटे बच्चे, उनको कोई फिक्र नहीं है कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, वो डांस कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं. बट जैसे जैसे आप बड़े होते हैं हमें फिक्र होती है लोग क्या कहेंगे, और फिर हम वो चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं और फिर हमारी थिंकिंग फ्रेम होने लगती है. तो छोटे बच्चों के साथ स्पेशली अभी जो आपने कहा मैम, वो बच्चों के साथ होने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी पड़ेगी. तो उन्हें फिक्र नहीं होती लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं. So हमें भी फिक्र नहीं होनी चाहिए. राइट? हाँ, फिक्र होनी चाहिए कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं. राइट? सो दैट इज द फिक्र. दैट स्ट्रेस हैज टू बी देयर. आई एम नॉट मीनिंग टू से कि हमारी स्ट्रेस फ्री लाइफ हो. Stress of giving good results in my child's life should be there on every educator. मुझे कल बच्चे को क्या कराना है उसका स्ट्रेस होना है, और उसका स्ट्रेस नहीं है तो फिर आप अच्छे एजुकेटर नहीं हैं. थैंक यू विवेक फॉर ब्रिंगिंग दिस वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट. ओके. सो अब बच्चों के साथ बच्चे आ गए, आपने उनको कंफर्टेबल भी कर दिया, स्माइल भी करा, सब कुछ कर दिया. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि ये ढूंढना कि व्हाट डू माय चिल्ड्रन लव टू डू.
किस बच्चे को, अब आप अगर क्लास में छोड़ देंगे ना बच्चों को अलग अलग कॉर्नर में, तो आप देखेंगे कोई बच्चा तो ब्लॉक्स में खेल रहा है, कोई बच्चा मिट्टी में जाना चाह रहा है, कोई बच्चा तो कागज उठा रहा है, और कोई बच्चा किताब उठा रहा है, कोई बच्चा सिर्फ दूसरे बच्चे के साथ बैठ के बात कर रहा है। तो अब आपको बहुत ऑब्जर्वेंट होना है एज ए एडुकेटर, राइट? अब मैं देख रही हूँ ज्यादा कैमरे खुलने शुरू हो गए, थैंक यू। ओके, सो क्यों ऑब्जर्वेंट होना है? वो इसलिए होना है कि आपने ये देखना है कि जो मेरे बच्चे हैं वो क्या पसंद करते हैं, खाने में क्या पसंद। यू नो, पेरेंट्स यूज्ड टू बी टेकन बाय सरप्राइज। जब 12:30 बजे किसी बच्चे को लेने आते थे ना, और मैं उनको बोलती थी मैम प्लीज कल से ये मत भेजना, हाँ इसको थोड़ा सा ऐसा ट्विक करके ऐसे बना देना, आप पालक और रोटी नहीं देना, पालक को पीस के ना उसका पराठा बना देना। तो दे वुड बी रियली, इतना बड़ा बड़ा आंखें खुल जाती, मैम लेकिन आपको कैसे पता हमारे बच्चे के टिफिन में आज क्या आया था? ऐसे देखिए, अगर मुझे पता नहीं होगा तो मेरे को कोई हक नहीं बनता कि आज मैं इस कुर्सी पे बैठूं जिस पे बैठी हूँ। तो कहने का मतलब कि हमको हर बच्चे की जिंदगी में डब्बे तक में घुसना है। अब वो बच्चे को टिफिन टाइम हो गया, वो खाए नहीं खाए, कैसे खाया, उसको पसंद आया नहीं आया। बहुत बार हम लोग अपना खाना बच्चों को खिला देते थे, किसी बच्चे की खाना गिर जाता है, तो हमको ये सब चीज में बच्चे के देखना है, उसको क्या पसंद है, उसकी यूनिकनेस वहीं से निकल के आएगी। वो आपको बताएगा, बातें करो बहुत बच्चों के साथ, हाँ वो बताएगा आपको मेरे पापा ने बड़ा अच्छा पराठा बनाया, मेरी मम्मा पापा की आज लड़ाई हो गई, वो आज पापा दूध नहीं लेने गए। ऐसे ऐसे किस्से, हमको इतना कुछ परिवार के बारे में पता होता था बच्चों से, जो परिवार वाले कभी कभी बड़े एम्बैरस हो जाते थे। हम उनको बोलते थे देखो आपको थोड़ी काउंसलिंग चाहिए, आ जाओ, अब हमको पता है, अब आप सोचो, शर्माओ मत, ठीक है, वी नो एवरीथिंग थ्रू योर चाइल्ड। सो दे न्यू दैट आवर चिल्ड्रन आर सो लव्ड। आप कहाँ हर चीज शेयर करोगे बताओ? जहां आपको भरोसा होता है और जो आपको प्यार करता है। मम्मी के पास जाके शेयर करोगे, मम्मी बहुत नॉन जजमेंटल होके अनकंडीशनल प्यार देती है हमको। तो वो बच्चे भी ऐसे ही हैं, जिंदगी तो जिंदगी है ना, चाहे बड़े हों या छोटे हों, ठीक है? सो रियली सी व्हाट इज इट दैट दे लव टू डू। Okay, now when we are, now let's take, we are starting a small class. Now when I say class, I don't mean 4 walls. A class could be under a tree also. तो हम बहुत बच्चों को नेचर में पढ़ाते थे, पेड़ों के नीचे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, बच्चे कितने हाइट के होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, शायद आपकी कमर तक ही आ रहे हो। ओके, सो अब मैं तो खड़ी हूं ऐसे पीपल के पेड़ की तरह, और बच्चा मेरा ऐसा नीचे है, और मैं बोलते चले जा रही हूँ, बच्चे की गर्दन ऐसा हो गया, अब उसका अटेंशन स्पैन खत्म हो गया, तो थक गया आपको देखते देखते। So please, as educators, whenever you even make a simple conversation to a child, जब बच्चे हमारे पास एंटर करते थे, हम उनको नीचे बैठ के प्रणाम करते थे। उनके लेवल पे आकर आपको उनको विश करना है, उनके लेवल पे, आई लेवल पे आना है, बात करना है। आज मैं इधर देख के बात करूंगी, आपको मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन का? नहीं आएगा ना। वी मेक एन आई कॉन्टैक्ट। सो प्लीज बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट। बड़े बड़े लोग हैं जो आई कॉन्टैक्ट से बात नहीं करते हैं। You know, when I used to take interview, very skilled teachers, I said, no, sorry, thank you. But ma'am, what is my problem? I said, nothing. आपने 30-35 साल में आई कांटेक्ट नहीं करना सीखा है, और मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं दे सकती आई कांटेक्ट के। आप 3 साल आई कांटेक्ट करें, सीखें, तब तक मेरा बच्चा तो स्कूल से बाहर चला जाएगा। सो आई कांटेक्ट करना, बिकॉज यही चीजें हम बच्चे को सिखा रहे हैं। वो जो हमें देख रहा है ना, समझ लो वही वो बन रहा है। तो अब आप देखो, आप क्या चाहते हो, अपने आपके बच्चों में आउटकम क्या आना चाहिए, तो आप वैसे ही बन जाओ बस। यही मैं चीज पेरेंट्स को बोलती हूँ, और यही चीज मैं हर एडुकेटर को बोलती हूँ, राइट? सो लेट अस ऑल बी एट देयर आई लेवल एंड ऑलवेज मेंटेन एन आई कांटेक्ट। आंख में आंख डाल के बात करो। आपकी आंखें बोलती हैं, आपको मालूम है आंखें बोलती है ना? जरा सब अपनी आंखें दिखा दो। हमारी स्माइल भी बोलती है, बिना कुछ कहे बोल देती है। हमारी आंखों से गुस्सा भी झलकता है, प्यार भी झलकता है, और सैडनेस भी झलकती है। सब इमोशंस आती है हमारी आंख में। बहुत खूबसूरती से बनाया है भगवान ने हम सबको। सो आंखों का जो रोल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे को याद है, मेरी माँ की आंख से मुझे बड़ा डर लगता था।
तो वो बड़ा डरा देती थी। कोई हमारे घर में गेस्ट आ जाता था, शी वुड ओपन हर आईज एंड गिव अस एन वार्निंग कि डोंट मिसबिहेव. Okay, so please let us use our eyes also as eyes of compassion and kindness. Okay, अब हो गई बात हमारी स्माइल की, हमारी आंखों की और हमारे कान की भी. मैंने कहा हमारे बच्चों से बात करना बहुत, वी हैव टू बी ग्रेट लिसनर्स. अगर हम बच्चे की बात को काटते रहेंगे ना, और बच्चा जो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, पहले एक्टिविटी खत्म करो, हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, पहले ड्राइंग खत्म करो, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, पहले लिख लो. सॉरी, बच्चे का तो कट गया. उसने बात, उसका मैसेज जिंदगी भर के लिए उसकी पहली किताब में क्या पन्ने में लिखा गया, मुझे कोई सुनेगा नहीं, किसी से शेयर करने का कोई फायदा नहीं है. आपने नहीं कहा ऐसा, लेकिन ये उसका अनुभव है. दिस इज अ मैसेज दैट द चाइल्ड हैज टेकन विद दिस एक्सपीरियंस दैट नो वन वांट्स टू लिसन टू मी. घर जाता हूं तो मम्मी बिजी है, डैडी बिजी है. तो फोनों ने तो जान ही ले ली आजकल सबकी. बच्चे को भी एक पकड़ा देते हैं, भाई तू भी बिजी रह, तो यूट्यूब देख, सुन राइम सुन, स्टोरी सुन. हमको टाइम नहीं है. टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज टेक्नोलॉजी के बिना हम 121 लोग जुड़े नहीं होते. सो टेक्नोलॉजी जहां इंपॉर्टेंट है वहां हमको यूज करनी है और आनी भी चाहिए. इफ आई से ओहो आई कांट यूज कंप्यूटर, सॉरी सॉरी, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती, सॉरी, फिर आज आप 21वीं शताब्दी के एडुकेटर बनने के लायक नहीं हो. बट हर चीज की गुडनेस है, गुड एंड इविल को एग्जिस्ट, राइट. सो टेक्नोलॉजी की भी गुडनेस है और टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बिकम एन इविल. मैंने क्या देखा है, कहीं कहीं पे टीचर पीछे बैठी है, अपना खाना पीना खा रही है, फोन पे बात कर रही है, राइट, और क्लास में लगा दिया कहानी डिजिटल. मैम हम डिजिटल वर्ल्ड में है ना, तो बच्चे डिजिटली सीख रहे हैं. अरे भाई, डिजिटल सीखने मतलब थोड़ी है टीचर का रोल खत्म हो गया. You have to engage with the child. So what we used to do, show the picture. इमेज आप नहीं बना सकते हो ना कहानी की, तो आपको सारी किताबें खरीदने का जरूरत नहीं है. ले लो, उठाओ, वॉइस म्यूट कर दो, वॉइस म्यूट करो और खुद बोलो. दिस इज व्हाट वी हैव डन इवन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस विद चिल्ड्रन टिल लास्ट ईयर. तो वी वुड डू द स्क्रीन शेयरिंग ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरीज, बिकॉज अच्छे कैरेक्टर हैं, बच्चे उलझ जाते हैं और टीचर बोल रहा है, क्योंकि वो आवाज उसको समझ में आती है, वो आवाज के साथ वो जुड़ा हुआ है बच्चा. वो नई आवाज आती है ना, तो क्या होता है, बच्चे आवाज पे फोकस नहीं करते हैं, वो विजुअल पे फोकस करते हैं, तो उनका ऑडिटरी सिस्टम वीक हो जाता है, राइट. एंड आज की तारीख में बहुत बच्चे, आई डोंट नो अबाउट द रूरल एरियाज, बट अर्बन एरियाज में स्पीच डिले इज बिकमिंग वेरी कॉमन, which is one of the reasons for learning disabilities. तो स्पीच डिले कब आता है, जब हम सुने नहीं हैं, लोगों को बोलते हुए नहीं सुने. पहले जमाने में जॉइंट फैमिली, आपके रूरल एरिया में तो अभी भी बहुत जॉइंट फैमिली, बहुत सारे लोग हैं, बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, तो बच्चा सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है. हम कैसे आता है, फर्स्ट वी लिसन, देन वी स्पीक, एंड देन वी रीड, एंड देन वी राइट. ये प्रोग्रेशन है ना. तो हमको सुनना बहुत जरूरी है. जब तक बच्चे आपकी आवाज सुनते नहीं रहेंगे, क्यों एक बच्चा अकेला घर में नहीं सीखता है, लेकिन जब 10 बच्चे होते हैं तो वही चीज जल्दी सीख जाता है, बिकॉज वो बहुत कुछ बार बार रीइंफोर्स हो रहा है, सीख रहे हैं, रेपिटेशन हो रही है. ओके, सो अब हो गई बात हमारी, जो हमने बहुत अच्छा सा स्माइल किया, आंखों का अच्छा इस्तेमाल किया, कानों का अच्छा इस्तेमाल किया. देखो बच्चे बहुत सेंसरी होते हैं इस एज में, सेंसोरियली सीखते हैं, तो हम कहते हैं उनकी सारी सेंसेस को एंगेज करके रखो. उनके कानों को एंगेज करो, उनकी आंखों को एंगेज करो, उनकी बोली से एंगेज करो, उनको सूंघने दो. बच्चों को देखा, हर चीज को सूंघते हैं वो, और फिर हम उनका मजाक उड़ाते हैं, क्यों सूंघ सूंघ के खा रहे हो, क्यों ऐसा ऐसा कर रहे हो. बट दैट इज द नीड. ओके, दे हैव टू फील एवरीथिंग. ऐसा ऐसा करके खाना. अभी मेरा ग्रैंडसन आया हुआ है, तो मैंने बहुत डांट लगाया उनको. मैंने कहा उसको आप खाना दे दो, थोड़ा सा ऐसा ऐसा करने दो, उसको बनाने दो, खरा वेस्ट करेगा थोड़ा सा, लेकिन उसको फील पता लगेगी, चावल की फील क्या है, रोटी की दाल की फील क्या है. दे नीड टेक्टाइल, जिसको हम बोलते हैं ना टच वाला सेंसेस, वो इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माई वॉइस. अब वॉइस तो सबकी है, कोई यहाँ डेफ डम तो बैठा नहीं है, ठीक है, हम सब बोल सकते हैं. हमको कुदरत ने ब्लेसिंग से बोलना बताया है, वॉइस दिया है, थ्रोट अच्छा दिया है, गला. अब हर एडुकेटर को स्वीट एंड सॉफ्ट वॉइस होना चाहिए.
कैसा वॉइस होना चाहिए? स्वीट एंड सॉफ्ट वॉइस। व्हाई? क्या चाहते हैं आज आने वाले समय में आपके बच्चे कैसे बोले? कड़क होके बोले, हे आना, इधर आ, इधर आ, इधर इधर, सुनो मेरी बात, मैम ने बोला, ठीक है? फिर आपने बच्चे से बात नहीं किया। बहुत बार क्या बोलते हैं, मैम हमने बच्चे से ऐसे बात नहीं किया ना, वो दीदी सुन नहीं रही थी, हम तो दीदी को बुला रहे थे, ए दीदी इधर आ, इधर आ, इधर आ। दीदी भी नहीं बोलते, नाम से बोलते हैं। हमारी टीचर्स जो थी, एडुकेटर्स, वो हर केयर गिवर को दीदी बुलाती थी। क्यों? क्यों? चाहे नाम लेती थी बट दीदी बुलाती थी। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई एम डूइंग इट, माय चिल्ड्रन विल आल्सो डू द सेम, राइट? सो दे वुड आल्सो से अंजू दीदी, खाली अंजू नहीं। व्हाट वी डू दे डू। सो प्लीज अपनी वॉइस को स्वीट करें और सॉफ्ट करें। और ये भी एक ट्रेनिंग है, प्री स्कूल एडुकेटर्स के लिए बहुत जरूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि आपके बड़े बड़े कक्षाएं नहीं है, 100 कक्षा, मैंने वो कक्षा भी ली है, हाँ, जहाँ पे मेरे पास 100 बच्चे थे बैचलर्स ऑफ एजुकेशन में, और उनको जब पढ़ाना पड़ता तो पीछे वाले जानबूझ के बोलते थे, मैम हमको कुछ सुन नहीं रहा है, ताकि टीचर और जोर के कड़के, हाँ, और जोर के, फिर उसका गला बैठ जाए, फिर अगले दिन आए नहीं वो और बोले मैं अब क्लास नहीं ले सकती। बहुत बहुत स्मार्ट होते हैं बच्चे जो कॉलेज में होते हैं, बट ये जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना हमारे पास, ये बड़े प्यारे होते हैं, तो इनको स्वीट एंड सॉफ्ट वॉइस अच्छा लगता है। तो लेट अस बी स्वीट एंड सॉफ्ट। थोड़ा सा शुगर ज्यादा खा लो अगर आपका वॉइस स्वीट और करना है तो, बट मेक एन एफर्ट। सी, अगर एज एन एडुकेटर हम अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे और प्रयास नहीं करेंगे, तो हम फिर वही दे रहे हैं जो हमारे पास है, and that is the biggest mistake that we are doing. If an educator is not willing to learn anything, and I am talking of absolute basics, my ability to listen, my ability to smile, my ability to love through my eyes, my ability to hold my child, हर बच्चे का हाथ पकड़ो, हर बच्चे को हग करो, हर बच्चे के सिर पे हाथ फेरो, हर बच्चे को पैट करो। यू नो दिस फिजिकल टच जो होता है ना बचपन में, वो बहुत मायना रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चिल्ड्रन फील वेरी लव्ड एंड important when they receive this kind of a love. So we have different ways to express our love. So when we make our voice nice and sweet and joke around with children, have fun, मस्ती करो, उल्टे सीधे हो जाओ कभी कभी, और हर रोज अपने कमरे का, हर जगह का एनवायरनमेंट बदल दो। वो मोनोटोनस होता है, एक ही जैसा कक्षा में रोज बच्चे आ रहे हैं, हम बोर हो जाते हैं ना। आपको मैं बोलूं रोज हरा ही रंग पहनना, बोर हो जाओगे ना। अब बच्चा उस दीवार पे रोज वही तस्वीर देख रहा है, बदल दो, खाली कर दो, कुछ कुछ अलग अलग करते रहो। दैट इज द इनोवेटिवनेस ऑफ द टीचर। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कमिंग टू द फिजिकल टच, इज द पावर ऑफ प्रेज। You know, when we praise a child, and that doesn't mean praising only children who do very well in your, as per your parameters, कि बच्चे को लिखना आना चाहिए उसने लिख लिया, बच्चे को सारे फलों के नाम आने चाहिए उसने कर दिए, और जिसको नहीं आए तो उसको भी प्रेज करो। यस यस यस, वी कैन डू इट, लेट्स डू इट, देखो आप भी कर, हम सब कर सकते हैं। कभी भी उसको आप में और उसमें फर्क मत डालो। यू नो हाउ वी, तुम करो, नो, यू do it, it's instructional. We say let us do it, we'll do it together. So we come from a I space to we space and our space. Our classroom, not मेरा क्लासरूम है, ये हमारा क्लासरूम है, हमारा स्कूल है। तो बच्चा जो है ना वो सेल्फिशनेस से कंट्रीब्यूटरी में आ जाता है। आई इज सेल्फ, राइट? और हमारा दुनिया क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट एंड हैव योर इंडिविजुअलिटी, बट इंडिविजुअलिटी के साथ हमको एक्सपेंशन भी करना है, वी स्पेस में आना है, आवर स्पेस में आना है। जब भी हम कुछ करें ना, ओ हमसे ये गलती हो गया, तो कोई बच्चा एक्सक्लूड नहीं होता, इट इज इंक्लूसिव, यू आर टेकिंग एवरीवन टुगेदर। ओके, सो वी से लेट अस डू इट, लेट अस डू दिस। चाहे आप एक ही बच्चे के साथ बैठे हो, चलो हम ये करते हैं, चलो हम इसको ऐसे करते हैं, देखो हमने कैसे कर दिया, देखो हमने ये ऐसे बना दिया,
ठीक है? So and there is no right and wrong in the preschool. Please, एक हाथी को अगर किसी ने पिंक कलर कर दिया तो बोल फाड़ना मत, उसको क्रॉस मत लगाना, ये उसका इनोवेटिवनेस है. Allow the child to express. You know, हम क्या करते हैं, एक वाटर टाइट बॉक्स बना देते हैं, इस बॉक्स के बाहर थिंकिंग नहीं कर सकते. तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है. We make them, we don't make them think out of the box. Out of the box means जितना दिखता है बस वही, उतना लिमिटेड सोच. उनका सोच बढ़ा होता है बच्चों का, उनको करने दो. उनको जब आप ड्राइंग बनाने को बोलोगे ना, वो आपको इतना सुंदर सा बना देंगे कि आप बोलोगे मेरी एक टांग लंबी एक टांग छोटी है, देन लेट्स हैव फन. ओहो देखो मैम की एक टांग बड़ी एक टांग छोटी, कितना मजा आ रहा है. देखो तो अब मैं आपको एक टांग बड़ी छोटी करके दिखाऊं. सो व्हाट हैपेंस इज यू डिडंट मेक फन ऑफ द चाइल्ड, you praised the child and you allowed the child's creativity. अब उसने क्या अपनी फर्स्ट डायरी में लिख लिया, पहली स्कूल की डायरी में, कि I can be creative, my creativity is appreciated, is praised. तो प्लीज बच्चों को जो करने हैं, ठीक है, उनको हमको एक ढांचे में बांधना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप बन जाएंगे. दैट इज अ सोशल कंडीशनिंग. इसीलिए बच्चे स्कूल आते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको एक ही गाड़ी में बिठा के एक ही बोगी में बिठाना है. सब बच्चे अलग अलग गाड़ी में बैठेंगे, अलग अलग बोगी में बैठेंगे. ये ब्यूटी है प्री स्कूल एजुकेशन. तो और हमारे पे कोई सीबीएसई का दबाव नहीं है, इस तारीख को एग्जाम होना है, इस तारीख को प्रेपरेटरी होना है, कुछ नहीं है. ब्यूटीफुल प्री स्कूल एजुकेशन है. आप अपने बहाव से बच्चों को ले जा सकती हैं. अगर उनको एक चीज नहीं समझ में आ रही है, उसके ऊपर और ज्यादा समय लगाओ. किसी ने कहा मुझे वो केमिस्ट्री या हिंदी नहीं समझ में, कोई भी सब्जेक्ट था, उसको टीचर रिलेट करता था. तो द काइंड ऑफ, अभी आज वक्त नहीं है बट मे बी सम अदर डे आई विल टॉक ऑन दैट, कि आपने एक छोटी सी चीज ली. ओके, अब लेट अस से वी आर डूइंग नंबर्स. ओके, तो हम नंबर्स कैसे करेंगे? मेरे पास तो अब एक टीचर कहती है भाई मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई सामग्री नहीं दी गई मेरे स्कूल में, मेरे पास पैसे नहीं है कोई रिसोर्सेज लेने के, लेकिन मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है ना, कुछ सिखाना है. पढ़ाना नहीं मैं वो यूज करूंगी, सिखाना है और सीखना. तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा. चलो मैं कहती हूँ मेरे घर में तो आज 10 आलू पड़े हैं, चलो मैं अपने टोकरी में 10 आलू लेके जाती हूँ. ठीक है, अब मुझे बच्चों को गिनती सिखानी है. अब मैंने आलू ले लिया. हम आलू से बच्चे को गिनती सिखा सकते हैं, हाँ कि ना? हम आलू से बच्चों को रंग सिखा सकते हैं. हम आलू को छील के बच्चों को सिखा सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइड आउटसाइड, बाहर से कैसा दिखता है अंदर से कैसा है. हम बाहर से देखो कैसा है, हम अंदर से तो कुछ और हैं. हाँ, तो कभी कभी उनको अपनी अंदर की भी तस्वीर दिखा दो, आपके अंदर हार्ट है, लंग्स है, नॉट डिटेल बट लेट देम रिलेट विद इट, यू नो. देन व्हाट एल्स कैन वी डू? वी कैन डू बिग एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट. एक बड़ा है एक छोटा है. देखो आलू भी, हम बच्चे भी हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, मामी छोटी है डैडी बड़े हैं, चाचा बड़े हैं पापा छोटे हैं. तो दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल. ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट. अब आपने आलू को पकड़ा, पकड़ो पकड़ो, दबाओ इसको, दब रहा है नहीं, एक आलू उबला हुआ ले जाओ, अब इसको दबाओ, ओ ये तो टूट गया, ये तो मसला गया, ये तो आलू बहुत सख्त है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है. तो एक आलू तो आपके गांव में मिलते ही है ना, सब भाजी मिलता है, सब फल मिलता है, सब पत्ता है, डंडी है, सब कुछ है. आपको तो ऐसा स्कूल बना देना है कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके बच्चे अव्वल है, A1 है आपके बच्चे, and they can become. That is what we have experienced and that is what we have done in our center. We didn't spend on money on resources. We spent on good educators, good training. Okay. अब हमने बात किया बच्चे बहुत गलतियां करेंगे, ठीक है. अब ऐसे लिखना था, ऐसे बनाना था, उसने बाहर निकाल दिया रंग, तो अब हमको समझ में आनी चाहिए बच्चा बहुत छोटा है, पहली बार क्रेयॉन पकड़ रहा है, तो उसको एक दीवार पे अखबारें भी लगा दो. पुराने ये होते हैं ना आपके क्या बोलते हैं वो जो बैनर होते हैं, बैनर, ठीक है, गांव में से सारे बैनर निकाल लाओ, ठीक है. अब वो लेके उसका उल्टा साइड चिपका दो टेप से दीवार के ऊपर, कोई दीवार भी खराब नहीं होगा. बच्चे की हाइट पे है, दे दो उनको रंग. किसी को पेंट अच्छे लगते, पेंट भी नहीं है ना, हल्दी तो है, बीटरूट तो है, मेहंदी तो है, ले आओ नेचुरल कलर्स.
मुंह में भी डाल दिया, आंख पे भी लगा लिया, कोई वांदा नहीं। ओके, उठाओ, करने दो उनको जो करना है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। सो लेट अस बिकम इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। और बच्चे की इसमें कोई सही और गलत नहीं है, बट ठीक है, जब हम थोड़ा सा बच्चों को कराएंगे, हम उनको सिखा रहे हैं पजल बनाना, तो पजल में बच्चे ने तो कोई गलती नहीं है, उनको बोलो अच्छा अच्छा चलो वी विल डू इट। सो अलाउ देम टू मेक मिस्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बच्चों को इतना प्रोटेक्ट कर देते हैं ना कि हम उनको गलती करना छोड़ देते हैं, हम गलती नहीं करते हैं, एडल्ट्स करते हैं ना, अपने अपना ऑफिस में, घरों में सब गलतियां करते हैं। हर बार आपका खाना उतना ही उम्दा बनता है? नहीं बनता ना, कभी कभी खराब हो जाता है, नमक ऊपर नीचे हो जाता है ना। सो अलाउ चिल्ड्रन ऑल्सो टू मेक मिस्टेक्स, डजंट मैटर, गिर गए ना, उठ जाओ, हम तो बहुत वीर जवान है, उठ जाओ, राइट? ये नहीं बोलो मेरा बच्चा गिर गया गिर गया गिर गया, नो 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 नो, मेक देम स्टाउट, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, कि मैं गिरता हूं तो मैं उठ सकता हूं, मैंने चोट खाया तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। ओके, ऑल राइट। नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बच्चे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनको हम डो बनाते हैं ना, अर्बन एरियाज में क्या होता है, मार्केट में मिलता है वो प्ले डो, कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, आधे चाइना से आते हैं, केमिकल से भरे हुए, मत ले लो। आटा है ना, गेहूं की चक्की में जाओ, आटा ले लो, आटा बच्चों को ही बोलो, उनके साथ मिलके गूंद लो, रंग बदलना हो तो उसमें थोड़ा सा रंग डाल दो, हल्दी डाल दो, किसी दिन चुकंदर डाल दो, किसी दिन कोई और रंग डाल दो, कोई भी रंग डाल सकते हो आप, हमारा सब भोजन में रंग ही रंग है। इतना खूबसूरत देश है हमारा। तो वो आटा गूंद के ना बच्चों को दे दो। अब वो इतना खूबसूरत चीजें बनाते हैं डो से कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, बच्चों की जो इनोवेटिवनेस है, उसको प्लीज उभारना है, बहुत उभारना है। और कभी भी बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, ओ ये तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। अरे कोशिश तो करो। अब आपके पास आलू है ना, आलू के साथ आप रेस भी कर सकते हो, आलू के साथ आप कैच एंड थ्रो भी कर सकते हो, बॉल नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलू के साथ ही कैच एंड थ्रो करते हैं। तो कहने का मतलब ये आपकी अपनी सोच है, हम डीलिमिट कर रहे हैं अपने आप को, बंदिश में, बाउंड्री में बना रहे हैं, या सोच रहे हैं मेरे तो रूरल एरिया में बैठा हूं भाई, मुझे तो इतना कुछ रिसोर्स अवेलेबल है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। अर्बन एरियाज में रिसोर्सेज नहीं है, रूरल में है। I wish I was teaching in a rural area. It would have been most wonderful school for me, right? My field would have been school. पेड़ के नीचे is a school. Okay. Now, next part आपका ये तो हो गया बच्चों के साथ, ठीक है? अब हमको आया, पेरेंट्स भी एक तो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, ठीक है? जो बच्चों के माँ बाप हैं, परिवारजन हैं, वो भी तो आपका इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना, आपके स्कूल का, आपके सेंटर का। अब होता क्या है कि एक बच्चा नहीं, ये हमारी नॉर्मल आदत है, हम अपने बच्चों के बारे में लोगों को कंप्लेन करते फिरते हैं। तो नाउ व्हेन यू पेरेंट्स कम, तो आप कहेंगे देखिए जी आपका बच्चा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहता है ना, खाना खाता है, बड़ा तंग करता है आपका बच्चा। और ये बच्चा सुन रहा है, राइट? सो उसको, उसने पहला मैसेज जिंदगी का क्या ले लिया? कंप्लेनिंग। व्हेन यू कंप्लेन, others pay attention. My parents were paying attention when my man was complaining. So I have also learned to complain. So उसको lesson of complaining कहाँ से आया? उसके early experiences से आया, right? So never complain. Share your concerns कि मैम उसको ना ये चीजें पसंद नहीं, हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके दे दें, हम बच्चे के साथ ना ऐसे कर सकते हैं, उसमें बड़ी एनर्जी है। जो बच्चे बैठते नहीं है ना, उसको ये कहना कि आप, ये बच्चा बिल्कुल नहीं बैठता भाई, इसको तो आप थोड़ा बिठाना सिखाओ। अरे कोई दवाई है जो दिखा के खिला देंगे और बच्चा बैठ जाएगा? उसमें इतनी एनर्जी है। तो बोलो आपका बच्चा बड़ा एनर्जेटिक है मैम, इसके साथ जरा ज्यादा इसको काम में लगाइए, इसको साथ बहुत कुछ करिए, बहुत ज्यादा खेलिए आप मिलके, ताकि बच्चा थक जाए, राइट? सो दैट इज हाउ वी हैव टू चैनलाइज एवरी चाइल्ड। ओके, अगर कोई बच्चा कॉग्निटिव में, जो दिमागी चीजों में बहुत तेज है, तो आप क्या कहेंगे कि मैम, या वो नहीं तेज है, नहीं करता है, आप बोलेंगे कि आप ऐसा करिए, आपके घर में कटोरी ग्लास है ना, आप ले आइए, थालियां ले आइए, बच्चे को स्टैकिंग सिखाइए, एक के ऊपर एक,
उसके अलग अलग पैटर्न बन जाते हैं। हम घर में रसोई लगाते हैं ना, तो कैसे रसोई में लगाते हैं, पहले एक लेयर, फिर उसके 2 के बीच में एक, फिर 3 के बीच में एक, पिरामिड बन जाता है। तो क्या हमको खरीदना है पिरामिड? हमारे तो घर में ही पिरामिड है, सिखा दो। ठीक है, तो लेट अस लुक एट इट, फर्स्ट लेट अस बी ऑब्जर्वेंट कि हम बच्चे को कहां से क्या क्या कुछ सिखा सकते हैं। कुर्सी है ना, एक कुर्सी पड़ी है आपके क्राफ्ट सेंटर में, अब कुर्सी में 4 टांगे हैं, सिखा दो गिनती 1 2 3 4। आपकी कितनी टांगे हैं? 2। गाय की कितनी टांगे हैं? 4। 1 2 3, चलो सब गिनती करेंगे, 1 2 3 4। तो हमको ना ये जो बाहर देशों से हम बंदरों की तरह एप कर रहे हैं ना कि उन्होंने ऐसा सुंदर सेंटर बनाया, मेरा उससे भी सुंदर होना चाहिए। अरे भाई फोकस करो, हम एजुकेशन क्या दे रहे हैं? सुंदरता तो आपके अंदर की है जो बच्चे को बनाएगी। क्लासरूम की सुंदरता बच्चे को जिंदगी नहीं बनाएगी, प्लीज। तो ये हमको सोच बदलनी है कि शहरों ने तो नास पीट दिया है, प्लीज गांव में मत नास पीटो। विथ फोल्डेड हैंड्स आई एम मेकिंग अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। मैंने बहुत काम किया है गांव में पहले 20 साल अपने करियर के। आई एम नाउ 60 years old, राइट, एंड आई टेक प्राइड इन व्हाटएवर वर्क आई हैव डन। और मैं बहुत डंडे की ठोक पे बोलती हूँ जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं उसमें अटूट विश्वास रखती हूँ। आप लोगों का इतना स्वच्छ सुंदर क्लीन वातावरण है, उसको पोल्यूट मत करो। You don't need any urban influence on your schools. Let them be, उसकी originality maintain करो, उसका essence maintain करो। Okay, wonderful. So now first and now the last 1 or 2 point कि अब हम normally क्या करते हैं, हम rote learning क्या होता है? रट्टाबाजी। ठीक है, हमने जो राइम्स करते हैं, पोएम्स करते हैं ना, तो पोएम्स को रटने के लिए पोएम्स नहीं करते हैं। पोएम्स का एक पर्पस होता है। 1 2 3 रट लिया बच्चे ने, देखा भी नहीं, एक एप्लीकेशन भी नहीं हुआ एनवायरनमेंट में कि 1 कितना 2 कितना, रट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ABCDEFG। तो हमको रटने वाला जमाना ना चला गया। आपको पता है जब हम लिखते भी हैं, आई एम श्योर आपकी कोई ना कोई ट्रेनिंग में बताया होगा, जब बच्चों के साथ लिखाई भी शुरू करते, ए से नहीं शुरू करते, हम पैटर्न से शुरू करते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन, ये 2 लाइन। तो फिर स्टैंडिंग लाइन से कौन से अक्षर बनते हैं? आई है। फिर हम स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, ई बनाते हैं, एस बनाते हैं, एक्सेट्रा। ओके, कहने का मतलब कि थोड़ा सा अब जो 21वीं शताब्दी में पढ़ाई लिखाई का चीजें बदल गई हैं। वी हैव टू चेंज द मोड। हमने शायद वैसा सीखा हो या बहुत लोग ऐसा करा रहे हैं। हमको रोज पेरेंट आते थे, आप तो लिखवाती नहीं है मैम, आज से जिंदगी पड़ी है उसकी लिखने के लिए, अभी आंखें यूज कर ले, वो कान यूज कर ले, हंसना सीख ले, जिंदगी को जी ले, उसके बाद तो लाद देंगे उसके ऊपर ट्यूशन पे ट्यूशन, ट्यूशन पे ट्यूशन, जा बच्चा इस ट्यूशन में जा, फिर उस ट्यूशन में जा। वो कुछ नहीं सीख रहा है। दैट्स नॉट एजुकेशन। वी आर ओनली मेकिंग देम लिटरेट। वो केवल पढ़ना लिखना। एजुकेशन इज कैरेक्टर। मुझे दूसरों को समझने की सेंसिटिविटी कितनी है, मेरे को दूसरों के प्रति प्यार कितना है, मेरा कैरेक्टर लॉयल है, मुझ पे लोग भरोसा कर सकते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। अब धूप निकली है, बच्चों को बोलेंगे बहुत धूप है, बहुत धूप है, अब क्या करें क्या करें, सर पे धूप लग रही है, आंखों में धूप लग रही है, क्या करें क्या करें। लेट चिल्ड्रन कम अप विद द सॉल्यूशन। ओके मैम क्या करें क्या करें, ओहो पेपर, मैंने अखबार रख लिया सर पे, मेरे को ऊपर सर पे धूप नहीं लग रही है। एक बच्चे ने अपना कपड़ा लिया सर पे रख लिया, मेरे को सर पे धूप नहीं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सो लेट अस टीच देम इन सिंपल। हमको लगता है कुछ नहीं, बट आज मैं आपको बताऊं, हम सब चीजों से बच्चों को टीम स्पिरिट सिखा रहे हैं। प्रॉब्लम जो MBA में पढ़ेंगे वो तब समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा, और अब समझ में आएगा ना तो तब भी समझ में आएगा। फिर जब वो काम पे जाएंगे ना, तब टीम नहीं बनती है, मेरा बॉस बेकार है, मेरे कोलीग्स लड़ाके हैं, तो यही सब कंप्लेंट्स लेके आते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने अपने फाउंडेशन ईयर्स में कुछ अच्छा नहीं सीखा। सो उनको इतना खूबसूरत अनुभव दो कि वो उनका इतना सुंदर सा फाउंडेशन बना दो। ओके, सो नाउ बी अ विलिंग लर्नर एंड
कंटिन्यू टू अपग्रेड योर स्किल्स एंड बी गुड रीडर्स ऑल्सो। देखो आपका जो भी तरीका है पढ़ाने का, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ, और CSE बहुत प्रयास कर रहा है, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू अटेंड ऑल योर वर्कशॉप्स एंड थैंक यू वेरी मच। आई नो मैंने आधा घंटा ऊपर ले लिया, मैं बहुत बोलती हूँ, सॉरी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच गुड listeners. Thank you very much. Thank you very, very much. There are no words. कम पढ़ेंगे मेरे ख्याल हमको हम समराइज कर नहीं सकते. I have noted down around more than 20 points, and each and every point. Dr. Piyush is going to make a PPT and circulate. No, I don't believe in PPT now. जिसने नहीं सुना उसने खो दिया. उसने खो दिया. उसने खो दिया. ठीक है, तो these educators जो आज थे, और मैं कहूँगा जो लास्ट तक, विवेक आपके वहाँ पे मेरे ख्याल there's a disturbance. I'll just तो आज जो एजुकेटर्स आई थिंक जब स्टार्ट करा था हमने, और अब जो हैं, अब 101 हैं, उसमें से 4-5 हम लोग भी हैं. तो आई थिंक दीज आर द, मैं भेदभाव नहीं कर रहा, बट द रियल एजुकेटर्स जो 1 घंटा के बावजूद, ये इस टाइम 4:35 हो गए हैं, एंड स्टिल एवरीबडी इज वेरी वेरी एक्टिव. सो यू कैन सी द लेवल ऑफ पैशन. डॉक्टर मीना, जो आप बात कर रहे थे, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पैशन, इट्स नॉट रियली व्हाट यू आर टीचिंग, वो पैशन आप में दिखना चाहिए, बच्चों को प्यार करना चाहिए, ऑल दोज ingredients. I think these are the real educators, and I am 100% sure ये सब के सब आप जो भी pointers थे, I think everybody would have noted down. Okay? मैं तो पेपर पेन जरूर लेके बैठा था, और क्योंकि सबके सब हम एजुकेटर्स हैं तो जरूर लेके बैठे होंगे. ठीक है, तो ये सबको आप रिवाइज करिए. वी विल ऑल्सो सी, अगर हम कोई समरी बना के आपस में शेयर कर सकें, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और कोई रह गया हो फिर दूसरा एजुकेटर उसमें ऐड कर दे. तो दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स. आई थिंक व्हाट यू हैव गिवन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स. एंड हमारा जो बाल विद्यालय का भी जो एक मेन थीम है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्लेफुल लर्निंग. हमारा प्लेफुल एजुकेशन नहीं है, it's playful learning. Let the child learn in a playful manner. And one example what you have given is excellent, and that's what we have been trying to see कि same video जो है, चाहे वो पंचतंत्र की स्टोरी है, चाहे कार्टून है, उसी स्टोरी को आप वीडियो पे प्ले अलग अलग तरीकों से, और बड़ी चीजें उसमें से एक ही स्क्रीन पे से ले सकते हो. उसको ऑडियो म्यूट करके आप बता सकते हो, दूर दूर 2 कैरेक्टर्स हैं, दूर है, पास है, एंड चिल्ड्रन दे ऑब्जर्व, एंड दैट आई थिंक इज, बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं. आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द एजुकेटर, आई विल रिक्वेस्ट इफ अर्चना इज देयर, उनको मौका नहीं मिला था शुरू में बोलने का, इफ शी वुड लाइक टू समराइज एंड से समथिंग. या अर्चना, आप अनम्यूट कर सकते हैं. Archana, you there? Yeah. बोलिए, आप अनम्यूटेड है. I think there's some. Yeah. There's some problem. But we have excellent all these educators, ma'am. And Vivek, would you like to sum up? Yes, sir. First of all, Neena ma'am, we have done many sessions, and I have been a part of all these sessions. And I usually keep notepad and pen ready, but today I thought no, it would not work. I have made 31 points in a Word file. So I thought. So maybe we can add sir say that we may share it in WhatsApp group or maybe in any other format, but not like PPT and all.
but this was awesome, very useful session. Many things I was able to relate, and I think for the first time we are seeing so many, very good responses. They are very happy, and I think you will have to give more sessions to our educators, man. So this My is and very simple examples and all. Yes, please. Yeah, before you sum up, to share few of the experience, past experience, and current, and today what I saw in the VC. Actually, my name is Wasim Imam, and I'm a state manager, Jharkhand. Actually, sorry, ma'am, I have joined the VC a little late because I was engaged in another VC. वासिम आपकी आवाज क्लियर नहीं है मेरे ख्याल आप अभी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है वसीम. Am I audible? विवेक No, still breaking. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. So it was really wonderful session, ma'am, and we all have enjoyed. I think everybody here, I mean, in this session has enjoyed it literally every second of the session, whatever you delivered. And I think Archana, she's is really willing to say something. So please, आप share करें अपना experience. आवाज नहीं आ रही अर्चना वी कांट हियर यू आर अनम्यूटेड बट आवाज नहीं आ रही. अर्चना, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है. कोई इशू है आपके डिवाइस में या वॉइस नहीं आ रही है आवाज? So maybe one or two, maximum one or two educators. अगर कोई शेयर करना चाहें, please, quickly. Just give me 30 seconds. Am I audible now clearly? Yes, Wasim. Just I want to share कि जब मैंने late join किया and during the meanwhile I have asked my two of the colleagues to join this session forcefully. यार very good session is going on. Immediately join it. तो मैंने उनको कॉल करके ज्वाइन करवाया. Such a wonderful session, ma'am. Thank you, ma'am, and thank you, Piyush sir and Vivek sir. Thank you so much for organizing such a great session. It was really a very good learning thing. And the one more important thing at the last, that Play-Doh we used to purchase in the market, that is too many mixture of the Chinese product and chemical. And it's a good example that we should use at home with our ordinary flour or atta se bana ke. It's a very good example. Thank you, ma'am. Thank you, sir. वसीम एक चीज नहीं अनेकों चीजें हैं आपको कुछ खरीदने का जरूरत नहीं है. Maybe Yes, I'll ma'am. get another one session where I'll tell you. You ask me and I will tell you कि उसका जोड़ क्या है. हम जुगाड़ू देश हैं. Let us take pride in being a जुगाड़ू देश, right? One That more is how thing, if you education will reach the masses. Okay. sure, ma'am. Thank you. Yeah. One more thing, if you permit, can I say one more thing? Experience. Actually, during the pandemic, my child is 3 years now, and during the pandemic, मैं बड़ा worried था. I'm too concerned that school खुल नहीं रहे. मैंने उसको पढ़ाना कोशिश किया, मेरी वाइफ भी कोशिश की, but she didn't used to sit taking the मतलब किताब और बुक्स लेके नहीं. मैंने उसको प्ले मूड में किया. हाइड एंड सीक करता हूँ, कभी काउंटिंग से, कभी अल्फाबेट से, टाइल्स से, फिर वैसे करता हूँ ABCD टाइल्स. अब घर पे टाइल्स लगे उनसे मैं उसके साथ प्ले कर रहा हूँ. तो देन शी इज कैचिंग अप एवरीथिंग वन अ डे. और कभी कभी बच्चों को ना एक सरप्राइज काफी उनको इफेक्टिव होती है. अगर कुछ उसको अचानक से सरप्राइज दे दूं, लाइक समटाइम. Good Wasim, thank you very much. Hopefully Wasim is our state team member, so he is one of the members from the district in Jharkhand. So he is supposed to enroll and select more and more CSE Badla Vidyalayas. Any other educator? आज फिर इसको देखने लग गया. आदत नहीं सुधर तेरी. कोई मैडम ये तो कोई डांट रहा है. अभी किसी ने डांटना शुरू कर दिया.
Okay, I think Vivek, we can close then. Yeah. So I would request, ma'am, one of our colleagues, she is also a part of our CSE Bal Vidyalaya team. Pinky, if you are here, would like to say something and close. थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर मैम। मैं अपना एक्सपीरियंस छोटा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। सर, मैंने टीचिंग ट्रेनिंग में जो 2 साल की ट्रेनिंग में सीखा था, जो अब मैं थोड़ा थोड़ा भूल चुकी थी, आज डॉक्टर मैम ने मुझे पूरा रिवाइज करा दिया कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो आई एम वेरी हैप्पी, न्यू एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू विवेक सर, thank you all of you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Bye bye. बढ़िया. So thank you, everyone. Take care. Thank you so much once Thank again, you, sir. ma'am, Thank you, everyone. ma'am. Thank you. Take care. एक प्रोजेक्ट की बात करें, एक प्रोजेक्ट की जब हम डैशबोर्ड में